जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना, वो सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना, वो सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, साथ संगत जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ जय गुरु जी। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਪਿਆਰਾ ਸਤਸੰਗ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਬਹੁਤ ਮਨ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਛੂਹ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਜਿਹੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਹੈਲਥ ਦੀ ਵੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਵੀ ਖਾਧੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਸ ਉਨੀ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮਨ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਭ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸਭ ਕੁਛ ਪਤਾ ਹਰ ਇੱਕ। ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲ ਕੇ, ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਦੱਸੀਏ ਨਾ ਬੋਲ ਕੇ, ਉਹ ਛੇਤੀ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਲਾਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਗੰਦਾ ਜਿਹਾ ਕਸ਼ਟ ਆ ਇਹ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਅਰਦਾਸ ਲਾਈ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ 75% ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ 25% ਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਲੇਡੀ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਦਵਾਈ ਲੈ ਲੈ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਆਪਣੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਫੀਲ ਹੋਈ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਚਨ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੈਸੇ ਘੱਟ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਫੀਸ 'ਚ ਦੇਣੇ ਸੀਗੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸਮੈਸਟਰ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਈ ਦੇ ਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਲੈਣੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਦਾਂ ਕਦੀ ਫੋਨ ਚੱਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਮਨ ਸਮੱਤਿਆ ਪਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਹੁਤ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਆ, ਮੇਰਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੜਾ ਬੇਅੰਤ ਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪੇਕਿਆਂ 'ਚ ਮੇਰੀ ਚਾਚੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਚਾਚੀ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕਰਦੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕਰਦੀਆਂ, ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਵਗੈਰਾ। ਮੈਂ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਉਂ ਦੇਖੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਪੇਕੇ ਵੀ ਛਡਾਉਂਦੀਆਂ, ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ, ਇਹ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਬਹੁਤ ਕਰਦੀਆਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਬੇੜਾ ਆ ਬੱਚੀ ਦੇ ਪੇਕਿਆਂ ਦਾ ਜਲੰਧਰ, ਉੱਥੇ ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਬੜਾ ਬੇਅੰਤ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਰੱਬ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਦੇ ਮਤਲਬ ਮਤਲਬ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਮ ਯੂਨੀਵਰਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੂਨੀਵਰਸ ਮੇਰਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਬੋਲੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ, ਬਿਨ ਬੋਲੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ, ਅਰਦਾਸ ਸੁਣਦਾ। ਧੰਨ ਮੇਰਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਧੰਨ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਪੂ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी। और संगत जी मैं आज अपना शुक्राना सत्संग करने जा रही हूँ। गुरु जी ने मुझे खास करके बहुत बार ये मतलब बोला कि गुड़िया शुक्राना कर, शुक्राना करने से बहुत सारे कष्ट कट जाते। मैं कभी शुक्राना नहीं करती क्योंकि मतलब मैं ऐसे बोलती हूँ शुक्राना शुक्राना गुरु जी, हर बात का शुक्राना, आपने जो दिया उस बात का शुक्राना।
पर मैंने कभी ऐसे शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड करके ऐसे प्रॉपर नहीं दिया है, मतलब किया है ऐसा कुछ। मैं यहाँ पे गुरुजी को हर चीज़ का शुक्राना करती हूँ। मैं जो भी हूँ, मेरे में जो भी बदलाव हुए हैं, मैं आज मेरी तबीयत जो भी ठीक है, हेल्थ ब्लेस की है गुरुपा ने मुझे, उसके लिए शुक्राना। गुरुपा ने मुझे शांति ब्लेस की है। मेरे लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स थे, रिलेशनशिप इश्यूज थे मेरे फैमिली के साथ और बाकी फ्रेंड्स और जो जिसके भी साथ थे, वो सब गुरुपा ने ठीक कर दिए धीरे-धीरे। मेरे पे जो भी नेगेटिविटी थी वो भी ठीक कर दी गुरुपा, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। रोज़ गुरुपा मुझे किसी न किसी रूप में दर्शन देते हैं, हमेशा, हमेशा मेरे साथ रहते हैं। मैं बयान नहीं कर सकती किसी भी वर्ड, मतलब मेरे पास शब्द ही नहीं है कि मैं गुरुपा का शुक्राना किस चीज़ में करूँ। मैं इतनी मैं कुछ नहीं हूँ गुरुपा कि आपने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है। मैंने इतने पुण्य नहीं किए कि मैं आपके काबिल ही नहीं हूँ। मैं ऐसा समझती हूँ गुरुपा, जितना आप मुझे दे रहे हो ना, मैं उसके काबिल ही नहीं हूँ गुरुपा। बस इतनी अरदास करती हूँ आपसे कि हमेशा आपके चरणों में रहूँ और आप मुझसे अपनी सेवा करवाते रहो। मैं रोज़ तो मंदिर नहीं जा पाती, महादेव मंदिर नहीं जा पाती या कुछ ऐसा ख़ास नहीं कर पाती। जब जब मतलब जब हो तब मैं मंत्र जाप करती हूँ, मैं पूजा करती हूँ, मैं जल चढ़ाती हूँ या कुछ गुरुपा से 10 मिनट 5-10 मिनट बातें करती हूँ। बस यही, पर मैंने सब गुरुपा पे छोड़ दिया है। जो भी है आपका है गुरुपा, जो गलत है, जो सही है, सब आपसे है गुरुपा। बस आप हमेशा साथ रहना, बस इसके अलावा कोई अरदास नहीं। और शुक्राना, हर बात का शुक्राना, सबको अच्छा रखना, सबको खुशियाँ देना गुरुपा, सबको हेल्दी रखना। आपने हमेशा हर प्रॉब्लम को मेरे तरफ आने से रोका है, उसके लिए शुक्राना। कभी कोई पैसों की कमी नहीं होने दी है, उस बात का शुक्राना गुरुपा। आपने कहा है कि मैं सब ठीक कर दूंगा। मेरी जॉब के लिए मैं रोज दिन रात आपसे प्रार्थना करती हूँ, मेहनत करती हूँ, जितनी भी करती हूँ। मुझे यकीन है कि एक दिन आप ये मेरा जो इस प्रॉब्लम है जॉब का, वो भी आप सॉल्व कर देंगे। मैं हर बात का आप ख्याल रखते हो, उसके लिए शुक्राना गुरुपा। पता नहीं मैं किस बात के लिए शुक्राना करूं, क्योंकि हर चीज आपने दी है गुरुपा। मैं खुद आपकी हूँ, आपकी बेटी हूँ। और मुझे नहीं लगता कि शुक्राना बहुत छोटा वर्ड है कि मैं आपके लिए बोलूँ। मैं ये पूरा अपने आप को भी आपको अनंत काल तक मैं आपको समर्पित करूँ तो भी कम है गुरुपा। इतना आपने अपनी बेटी को संभाला है, मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि मैं किस मुंह से आपका शुक्र करूँ। बस शुक्राना गुरुपा, आपने बोला था कि शुक्राना कर देना बेटा। शुक्राना शुक्राना। और संगत जी, हर हर बार कुछ भी हो, चाहे लाइफ में किसी भी बात पर कुछ भी ऐसा लगे ना कि सब खत्म होने वाला है, बस गुरुपा पर विश्वास करना। उनके घर देर है पर अंधेर नहीं, मतलब वो थोड़ा लेट होगा सब चीजें, पर होगी जरूर। यकीन रखना, सब अच्छा होगा, सब अच्छा होगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है और मैं महाराष्ट्र से बात कर रही हूँ। पहले मैं गुरु जी का शुक्राना करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग इस तरह से है कि मैंने जो जनवरी और दिसंबर में मुझे बहुत बड़ी दिक्कत आई थी। इतनी दिक्कत आई कि गुरुजी ने मेरे से बहुत बड़ी कृपा करके मेरे से और मेरे बच्चे को वहाँ से निकाल दिया है। तो मेरा ये शुक्राना सत्संग ये है कि
पहले तो मैं गुरु जी का शुक्राना करती हूँ कि लास्ट टाइम मैंने जो अरदास की थी कि मेरे जो हस्बैंड थे उनको नो पेन था और उनके ऑपरेशन होने वाला था। उसके लिए गुरु जी को मैंने अरदास की थी, वो सक्सेसफुली ऑपरेशन उनका हो गया। उसके लिए गुरु जी का लाख-लाख करोड़ बार शुक्राना। अब जी शुक्राना और एक शुक्राना इस बात का कर रही हूँ मैं कि मेरी बेटी पे बहुत बड़ी दिक्कत आई थी, जो पढ़ के वो कॉलेज में से यहाँ पर आ गई और एग्ज़ाम भी दी गई, लेकिन एग्ज़ाम में उसका बैकलॉग रह गया। तो वहाँ वो जब पढ़ रही थी, तो मेडिकल कॉलेज में इसमें बहुत मुसीबतें आई थी, बहुत पेशेंट तकलीफ़ देने के और बहुत सारे कुछ ना कुछ हो ही जाता था। लेकिन जब वो या वहाँ उसके पास वहाँ झगड़ा हो गया था, तो उसमें कॉलेज ने बताया था कि आप कंप्लेंट मत दे दो कि और वो पेशेंट ने उसकी क्रॉस अगेंस्ट कंप्लेंट भी थी। तो कॉलेज बोले हम देख लेंगे, आप कुछ मत करना। तो उसी तरफ से उसने उसको लेट गो करके अपना सब कंप्लीट करने के बाद वो घर आ गई। घर आने के बाद में पहली तो दिक्कत ये आई कि हमारा जो पुराना घर था, जो हम रेंट से रह रहे हैं, तो वो घर में वो जो उसका मालिक था, वो उसने बताया कि आपको घर खाली करना पड़ेगा। ये घर में बहुत सामान है, ये है, ऐसे कुछ न कुछ दिक्कतें वो बता रहा था। लेकिन फिर भी हमने हमसे इतनी कोशिश करके वो घर अच्छा ही रखा था। 2 साल हम वहाँ रहते थे, तो और उसने बताया कि मैं तुमको अभी यहाँ नहीं रख सकता, आप दूसरा घर देख लो। तो हमने दूसरा घर देखने का वापस ट्रांसपोर्ट खर्चा ये वो सब तो बड़ी मुसीबत आई थी। तो उसमें गुरुजी ने मुझे सही सलामत निकाला। उन्होंने मेरे को जल्दी से दूसरा घर उससे अच्छा क्लीन अच्छा बड़ा घर मिल गया और थोड़ा-सा भाड़ा बड़ा था, लेकिन वही एरिया में हमको घर मिल गया। तो देखो पैसे की प्रॉब्लम थी, फिर भी गुरुजी ने उसमें हमको घर पहले मिला के दिया। तो वो महीना इतना तकलीफ में था कि वो महीने में और एक मुसीबत आई थी, शायद गुरुजी की परीक्षा चल रही थी, तो कुछ पता नहीं। लेकिन जो वो झगड़ा वहाँ कॉलेज में हुआ था, वो झगड़े की एक वारंट नोटिस पुलिस की तरफ से मेरे बेटे के नाम पे आई, ईमेल करके। तो मेरी हम बहुत बहुत डर गए और उसमें था कि अगर नहीं आए, तो आपको वारंट निकाल के अरेस्ट करना पड़ेगा। देखो हम वो डर गए, हम उधर-उधर भागने लगे, पैसा कहाँ से लाएँगे और इतना दूर वापस जाना, पैसा भी नहीं था। और क्या करें? मैं तो इतनी डर गई कि अब करें क्या? मैं गुरुजी को अरदास करी कि गुरुजी ये क्या चल रहा है? आपकी बेटी आपका आपने सब सँभालना है, अब करें तो क्या करें? वो लोग ने कैसे भी क्रेडिट कार्ड पे पैसे निकाल के वहाँ गए। देखो वो जहाँ पढ़ती थी वहाँ तो अपना कोई नहीं था, लेकिन उसने जो कुछ दोस्त तो बना के रखे थे, तो गुरुजी ने उनको मीडिएटर बना के वो सब प्रॉब्लम मेरी इस तरह से सॉल्व हो गई कि क्या बोलूँ कि मैं गुरुजी के सामने इतनी रो पड़ी थी कि गुरुजी ये क्या हो गया? अगर मेरे बच्चे से एजुकेशन ऑफ हो गया तो मैंने क्या मिलाया? ये देखो मैं कॉलोनी लेडी हूँ और बहुत स्ट्रगल करती हूँ और बहुत बार मैंने बताया भी है ये हुआ ये कि वहाँ जाके सब मिलाना और अभी क्या करे लॉयर। तो देखो मैं गुरुजी को रात दिन मैं रोने लगी और गुरुजी को बोली गुरुजी आप ऐसे करो कि मेरे बच्चे को इतनी बड़ी दिक्कत में डालने से मुझे आप लेके जाओ, मैं ये देख नहीं सकती, ये दिन में नहीं देख सकती, अब उनको कौन बचाएगा। तो देखो जो को उसके डैडी थे उसने कभी पैसे देते नहीं है, बहुत तंगाते हैं, लेकिन उसने रिक्वेस्ट की कि मेरे पास पैसे नहीं, आप भेज दो, आप कैसे भेजेंगे तो हम आएंगे। वही 2 दिन में उनका कमर का ऑपरेशन था, जो मैंने पहले शुक्राना किया कि जो उनका सही सलामत हो गया। उन्होंने 1 लाख रुपए बेटे के लिए भेज दी कि आप आने की और उधर कुछ खर्चा होगा इसकी तरतीब हो जाएंगी। हुआ है कि उधर जाने के बाद मैं ये देखो मैं गुरुजी की नाम स्मरण मेरे नीमगौरी बाबा का और गुरुजी ने जपजी साहब का जो बोला है पाठ, तो मैं बाय हार्ट मेरे 5 पाठ है, आगे तो मेरे को हो नहीं सकते, होते नहीं है क्योंकि मेरा 61 ईयर्स ओल्ड है और मैं बार-बार सब कुछ भूल जाती हूँ। फिर भी मैंने 8 दिन रात दिन मैंने 8 दिन वो लोग उधर थे और मैं गुरुजी को अरदास लगा के गुरुजी के सामने बैठी कि गुरुजी मेरे को कुछ सूझ नहीं रहा था। ना मेरे को नींद थी, ना मुझे खाना पचा था, मेरे को कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। मैं ऐसे सब रख के मैंने गुरुजी के सामने बैठ के गुरुजी कुछ भी करो अपने बेटी का बचाओ। देखो गलती उससे भी हो गई है, मुझे पता है, फिर आप उसको माफ़ कर दो।
क्योंकि आपकी बेटी है, आप बोलते हैं ना गुरु की बेटी है, आप मुझे बोलते हैं ना चिंता मत कर बच्चों की, तो मैं चिंता नहीं करती हूँ कि मेरे मालिक, मेरे प्रभु, तुमने आपने ऐसी कृपा कर दी है कि वो टाइम मैंने इस तरह से गुरुजी को इतनी प्रे करी और गुरुजी ने मेरी अरदास सुन ली। मुझे इतनी कृपा करी कि उसको अरेस्ट तो हो ही नहीं गई। जज साहब ने उसके बारे में बोला कि आप आने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ वहाँ से ही प्रेज़ेंट हो सकती है, ऑन रिकॉर्ड तुम आप कुछ चिंता मत करो और सब कुछ ठीक हो गया। गुरुजी ने सही सलामत बच्चे को लाया, आते वक़्त थोड़ी दिक्कत हो गई, उसमें गुरुजी का कुछ ना कुछ होगा। पैसे का भी बंदोबस्त हो गया और मीडिएटर गुरुजी ने मेरे को मैसेज दिया कि मैं ब नाम से एक मीडिएटर भेज रहा हूँ और वो सब कुछ करेगा। तो वहाँ उसने जब एक जो एक दोस्त बना रखे थे उसमें इसमें का नाम एक ब से था, उसने पूरी हेल्प करी, वो जामीन हो गया, सब कुछ हो गया। इतना उधर बर्फ गिरता है, इतनी ठंडी है, कान है, उसमें भी बच्चे लोग, तीन ही बच्चों को गुरुजी ने इतना ब्लेस किया। उसमें भी मैं बोली गुरुजी बच्चे तो घूमने गए हैं तो उसको थोड़ा सा उनको घुमाओ, कहाँ जाएंगे, कभी जाएंगे वहाँ पे। गुरुजी ने वो भी उनकी इच्छा पूरी करी, उनको थोड़ा फार घुमा भी दिया और बच्ची सही सलामत आई। ये शुक्र है कि मैंने बहुत टाइम लगाया, क्योंकि मेरे घर का जो पुराना घर छोड़ के हम नए घर में आए, उसमें इतनी गंदगी थी, वो गंदगी गुरुजी का सत्संग में कैसे करूं। मैं एक महीना उनको लगा सब घर क्लीन करने के लिए, सब अच्छा करने के, वो भी पुराना ही घर था और सब गुरुजी ने वो प्रॉब्लम हमारे क्लियर कर दी है। देखो अब अमृत वेला में करती ही रहती हो, लेकिन मेरे को थोड़ा सा दिक्कत है कि मेरे को नींद मेरी चली गई है, तो नींद में कॉर्टिज़ोल थोड़ा बढ़ जी जाता है ना। तो मैंने हॉस्पिटल में जाके मैंने थोड़ा मेडिसिन, नींद की मेडिसिन डॉक्टर ने मुझे दी है। थोड़ा स्किन का प्रॉब्लम था, उसके लिए मुझे मेडिसिन मिल गए हैं और मेरी हेल्थ गुरुजी ने इच्छा अच्छी रखी है कि मुझे अब कुछ तकलीफ होती नहीं। मैं घर का पूरा काम करती हूँ, तो 1 महीना हो गया मेड नहीं ठीक से मिल रही है, तभी भी गुरुजी ने मुझे बहुत शक्ति दी है काम करने की, मेरी हेल्थ अच्छी रखी है और जो भी प्रॉब्लम आते हैं गुरुजी हर तरह से प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम निकला। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि चरना। ऐसी कृपा मेरे पे रखे, ऐसी सब संगत पे रखे, सत्संगत का भला करे। सब बच्चे पढ़ रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, सबको गुरुजी कृपा करे। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू। अगले सत्संग की मैं तैयारी करती हूँ। अगले सत्संग इतना बड़ा है, थोड़ा सा ये भी सत्संग लंबा हुआ है, तो मुझे माफ़ कर देना उसमें सागर जी। तो कुछ भूल चूक हो गई तो गुरुजी मुझे माफ़ कर दो। अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मैं जो भी बोलूँगी बाबा मुझसे बुलवाएंगे। संगत जी, आज बाबा ने मुझे एकदम से बिठाया है अपने पास और शुक्राना सत्संग करवा रहे हैं। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी, बाबा की असीम कृपा है। बाबा ने बहुत मेहर बख्शी है। इतनी नेगेटिविटी हमारे घर में थी, मेरे और मेरे अंकल जी के रिश्ता, आप ये समझ लीजिए कि मुझे नहीं पता वो कब तक टिकता, उसमें कुछ था भी या नहीं था, मुझे नहीं पता। और मतलब मेरी तरफ से तो मैं गिव अप कर चुकी थी। शायद वो सिर्फ परमात्मा है, मेरे गुरुजी हैं, जिन्होंने हमें बांध के रखा हुआ था, नहीं तो कोई कसर बची नहीं थी टूटने की। और बाबा ने बहुत सारे सत्संग सुनवाए, बहुत सारी बातें बताई, नेगेटिविटी, ब्लैक मैजिक, मदर इन लॉ, पता नहीं क्या क्या, जेठानी, ये वो, सबके बारे में कुछ ना कुछ पता चला। हालांकि मैं जल्दी मैसेज समझ नहीं पाती बाबा के, बुद्धू हूँ मैं, बच्ची उनकी, चल ली बैठी हूँ। तो लेकिन बाबा के ने कुछ ये चीजें मुझे फॉर्मली बताई, तो मुझे लगा कि नहीं, ये मेरे लिए ही है। एक्चुअली इफ्बट बहुत आ जाते हैं मन में ना, तो बस अपने आप को मुझे ऐसे लगता है कि मतलब बाबा, मैं अपने आप को इस लायक और इस मेरी औकात समझती नहीं थी और नहीं हूँ भी, कि मैंने इतने पाप किए हैं कि वो परमात्मा मेरे पे
दया कर रहा है मेरे लिए, ये इस चीज को समझ पाना और एक्सेप्ट करना ना मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कभी कभी। उसके लिए शुक्राना मेरे बाबा कि आप इतनी मेहर कर रहे हैं। मेरे बड़े अंकल जी के पिछले टाइम में बड़ा मुश्किल दौर आया, कुछ 1.5 करोड़ का पैसे का इधर उधर हो गया था। सॉरी, संगत दीपी के त्यौहार आ रही है, तो वहां पे अब बाबा ने उन पे मेहर की और उनको अप्रिसिएशन मिला हेड ऑफिस से। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे बाबा। संगत जी, बाबा ने कहा कि बहुत बड़ा कष्ट था। मेरे अंकल जी के साथ मेरी थोड़ी सी लड़ाई भी हुई, जिस 1-2 दिन वो चली, शांति थी, फिर लड़ाई होती थी थोड़ी सी, फिर कुछ होता था, फिर इससे पहले क्या होता था संगत जी, हम इतना ज्यादा लड़ लेते थे कि इवन हम वो कहते हैं ना, फाइटिंग विद आवर हैंड्स ऑल्सो इट हैपेंड। लेकिन बाबा बहुत शांति बख्शी है बाबा ने। स्पेशली मेरे अंदर बहुत नेगेटिविटी थी, बहुत ज्यादा, मतलब इतना एक्सट्रीम था संगत जी की, मुझे ऐसे लगता था कि अभी भी लगता है, पर वो बहुत कम हो गया कि कोई और मुझे कंट्रोल कर रहा है। संगत जी, बहुत पीस दिया बाबा ने, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। बाबा ने कहा कि बहुत बड़ा कष्ट था, बहुत बड़ा, जो मैंने छोटे में काट दिया एक छोटी सी फाइट में, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। बाबा ने कहा कि मैं तेरी सदा सुहागन की ब्लेसिंग दूंगा, अपना कोई सुहाग का जो भी सामान है वो लेकर आ। तो मेरे मन में आया, बाबा क्या लेके आऊं, है ना। अगले दिन बाबा सत्संग सुनवाते हैं कि मंगलसूत्र जो उसने पहनाया था वो मेरे पास रख, ऐसे जवाब देते हैं मेरे बाबा। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। बाबा को पता है मैं सबसे स्टबन चाइल्ड हूँ बाबा का, क्योंकि इतना हार देख ली लाइफ में ना कि वैसे जीत या फिर किसी का प्यार मिलता है ना, तो ऐसे लगता है कि ये सच है भी या नहीं। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। दुनिया ने जहाँ मुझे ये फील कराया कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, वहाँ अपने मुझे हर पल ये फील कराया कि तू मेरी बेटी है। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। दिखाया, गिराया और संभाला भी खुद, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। ये खुशी के इमोशंस हैं संगत जी। मैं कोई दुख में आज नहीं ये बात बोल रही हूँ और इमोशनल हो रही हूँ, बस बाबा के सामने बैठी हूँ तो अपने पिता को देख के शायद हर बेटी के आंखों में इमोशंस वाले आंसू आ जाते हैं, प्यार वाले तो बस यही है। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे बाबा। बाबा धीरे धीरे मुझे ट्रैक पे लेके आ रहे हैं और मुझे पता है कि वो मुझे जैसा वो मुझे देखना चाहते हैं वैसा मुझे बना देंगे एक दिन, और बना भी रहे हैं संगत जी। उन परमात्मा की बड़ी कृपा है संगत जी। विश्वास रखिए बस, अगर विश्वास जगमगाता है, परेशानी आती है, हम इंसान हैं, ये होता है, होगा, मेरे साथ भी हुआ। बैठ जाओ उनके सामने, उनके चरण पकड़ लो संगत जी। आपने अगर उनके पैर पे हाथ रख दिया और कहा संभाल लो ना संगत जी, विद इन सेकेंड्स आप गायब हो जाता है जो भी आपके मन में, जो भी नेगेटिविटी है, कुछ भी है, बहुत हल्का फील होता है संगत जी। और ये कीजिएगा, मतलब ये मैं करती हूँ, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती मैं कितनी नेगेटिव थी, और बाबा ने बहुत शांत किया है और करना है। अभी अभी भी तो बहुत काम करने की जरूरत है मुझ में, और कर रहे हैं मेरे बाबा। उन्होंने मेरा हाथ नहीं छोड़ा संगत जी। मैं बहुत घबराई, फड़फड़ाई, परेशान हुई, लेकिन उन्होंने मेरा हाथ नहीं छोड़ा। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे बाबा। मेरी गलतियों को माफ करने का शुक्राना, अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखने का शुक्राना। कोई बड़ा कष्ट था संगत जी, बाबा ने मेरे छोटे अंकल जी को भी हॉस्पिटल क्लिनिक में लेके गए, वहाँ पे ब्लड सैंपल लिया और रिपोर्ट्स में कुछ डेफिशिएंसीज थी वो आई हैं, और बाबा ने कुछ सप्लीमेंट्स दिलवाए हैं। मुझे पता है कि वो सब ठीक कर देंगे। और उस क्लिनिक में मैंने बाबा को कहा, बाबा आप मुझे तो बताओ ना कि आपकी रजा में सब हो रहा है। हालांकि हमें पता होता है कि बाबा ही करवा रहे हैं, मैं बाबा साथ ही होते हैं मेरे, लेकिन फिर भी ना एक मन में रहता है कि नहीं बाबा आप मुझे ना मतलब दिखा दो कुछ, ऐसे कुछ ना तो संगत जी, अपने बेटे का मामला होता है या कुछ बहुत ज्यादा मेरे लिए टफ सिचुएशन होती है ना, तब मैं जरूर उन्हें कहती हूँ कि नहीं मुझे अपनी प्रेजेंस जरूर दिखाओ बाबा। बस आपको देख के ना मैं
पहाड़ों पे भी चढ़ सकती हूँ, मैं कोई भी जंग जीत लूंगी, बस आप मेरे साथ रहना। एक्चुअली जंग तो वही जितवा रहे होते हैं, मेरा तो नाम हो रहा होता है। एनीवेज, तो संगत जी वहां पे कृष्ण जी का उन्होंने स्वरूप दिखाया, और उसके बाद मैं देख, मेरे मन में क्या आता है कि कृष्ण जी का है, गुरु जी आपने मतलब अपना शिव जी का या कुछ ऐसे जय गुरु जी या ऐसे कुछ नहीं दिखाया। देखिए मेरा दिमाग देखिए, उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ गुरु जी। और अगले दिन बाबा मुझे क्या बताते हैं कि मुझ में ही शिव है, मुझ में ही कृष्ण है, मुझ में ही राम है, तो तू चिंता मत कर, इन सब स्वरूपों में मेरी ही ब्लेसिंग्स है तेरे साथ, और मैं हूँ, तू टेंशन मत ले, जो करवा रहा हूँ मैं करवा रहा हूँ। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना का फिर एक्सप्लेनेशन भी उन्होंने मुझे बताया, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना, कि उसमें भी कृष्ण आता है, तो तू चिंता मत कर, ये सब मेरे ही रूप हैं और मैं तेरे साथ हूँ। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, आपकी असीम कृपाओं का शुक्राना, आपकी मेहर का शुक्राना। इसी के साथ मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। संगत जी, मुझसे कोई गलती हो गई हो तो माफ कीजिएगा बाबा, माफ कीजिएगा संगत जी। और सर्वदा भला करना बाबा, सबको खुशियां देना और सब पे मेहर करना बाबा। और बस इसी के साथ मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। एक बच्चे को किडनी की जरूरत है, 2 किडनी की, उनकी दोनों फेलियर हो गई हैं और बच्चा यंग है, वो उसी के लिए भी अरदास करती हूँ बाबा, मेहर करना उस बच्चे पे, उस माँ को हिम्मत देना। और मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी तदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी तदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत से। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तन तन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आप सबको भी जय गुरु जी। शिवाय अंकल, आपको भी जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ गुरु पाक के मेहर से। इतना कुछ हुआ है, इतनी सारी मेहर हुई है मेरे ऊपर, इतनी सारी कृपा की है गुरु पा ने कि और आज गुरुवार का भी दिन है, तो मैंने सोचा गुरु पा को शुक्राना अदा करूं। हाँ संगत जी, बहुत सारे छोटे छोटे सत्संग हैं जो आज आप सबके साथ साझा करना चाहती हूँ। मैं जैसा आपको पहले भी बता चुकी हूँ, कोशिश मेरी रहती है कि सोमवार के दिन मैं जाऊं, बड़े मंदिर जाऊं, गुरु पा के दर्शन करूं। और इस बार बहुत इच्छा थी कि गुरुपा मोर के रूप में, बहुत दिनों से गुरुपा दर्शन नहीं दे रहे थे। एक बार उन्होंने ड्रीम में मुझे बहुत सारे खूबसूरत खूबसूरत मोर दिखाए, तो उसके लिए शुक्राना गुरुपा। और इस बार जब मैं बड़े मंदिर से लौटी संगत जी, तो मुझे 2 या 3 इतने खूबसूरत मोर के दर्शन हुए। और मैं जब अपने बैल्कनी में खड़ी हुई तो सामने दूर वाली बिल्डिंग पे, वहां पे भी 2-3 मोर थे और वो नाच रहे थे संगत जी। इतना प्यारा दर्शन। थैंक यू गुरुपा, आपने मेरी ये बात भी रखी। आपने मुझे मोर के रूप में दर्शन दिए, 1 बार नहीं 2 बार। और संगत जी, इतने प्यारे मैसेजेस आ रहे हैं गुरुपा के। वो हमेशा ये कह रहे हैं कि तुम्हारे अच्छे दिन आने वाले हैं, तुम्हें अगर नाचना नहीं आता तो तुम नाचना सीख लो, बहुत सारी खुशखबरियां आने वाली हैं संगत जी। मैं इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है गुरु पाक के इन मैसेजेस को सुन के, पढ़ के, मैं आपको बता नहीं सकती संगत जी। एक वापस से जो कभी मन में कुछ दुविधा होती है, थोड़ी सी घबराहट होती है, लगता है कैसे ये काम होगा, ये इतना कठिन है, लेकिन जब गुरु पाक के मैसेजेस पढ़ती हूँ तो वापस से एक एनर्जी आ जाती है। लगता है कि हाँ, हमारी बात गुरु पाक सुन रहे हैं, उसका जवाब भी दे रहे हैं संगत जी। बस विश्वास, हम इंसान हैं, कभी कभी डोल जाता है विश्वास, जो कभी नहीं डोलना चाहिए, लेकिन इसके लिए सॉरी गुरु पाक। लेकिन आप फिर एक ही पल में हमें याद दिलाते हो कि हम क्यों डर रहे हैं, हमारे सर पे आपका हाथ है, तो बिल्कुल भी हमें चिंता नहीं करनी है, बिल्कुल भी हमें डरना नहीं है। और गुरुपा, सबसे जो मैं आपका शुक्रिया करना चाहती हूँ, शुक्राना अदा करना चाहती हूँ। मेरे मन में बहुत दिनों से पंडित जी ने कहा था कि रुद्र अभिषेक कराइए, जिससे घर के जितने भी वातावरण है उसमें बहुत शांति आएगी, बहुत कृपा बरसेगी, नए साल की शुरुआत है। तो मन में ये चल रहा था, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि रुद्राभिषेक कहाँ करूं। अपने दिल्ली में जो जहाँ हम रहते हैं
उस फ्लैट में करूं या फिर नोएडा में एक और हमारा घर है जहाँ पे मेरे फादर इन लॉ हैं कि वहां पे जाके करूं। लेकिन फिर हस्बैंड मान गए कि मैं सरिता विहार में ही जो जहाँ मैं रहती हूँ वहां पे पीछे एक बहुत अच्छा हमारे पॉकेट में मंदिर है, शिव मंदिर है, और वहीं पे रुद्राभिषेक की सारी तैयारियां हुई, पंडित जी से बात भी हो गई, सारी डेट तय हो गई, और डेट थी संगत जी बुधवार के दिन जो था 4 तारीख यानी कि कल। लेकिन गुरुपा की मर्जी, उन्होंने कुछ ऐसे एकदम से हस्बैंड की मीटिंग आ गई और रुद्राभिषेक टल गया आज के लिए, यानी 5 तारीख यानी गुरुवार, यानी गुरुपा का दिन, शुभ दिन। तो कहने का मतलब संगत जी, हम कुछ भी डिसाइड कर लें, गुरुपा जब जैसे चाहते हैं वो वही चीज हो पाती है। थैंक यू गुरुपा, आपने इतना बढ़िया दिन चुना, इतना सुंदर दिन चुना, गुरुवार का दिन चुना रुद्राभिषेक करवाने के लिए, और इतने अच्छे से गुरुपा हमारी आज पूजा हुई है। बिल्कुल समय से शुरू हुई, जैसे जैसे हमने क्या गुरुपा, आपने प्लान करवाया, आपने पूरा करवाया, आपने सारी पूजा के रीति रिवाज बहुत अच्छे से करवाया। पूरे टाइम में मंत्र जाप, महामंत्र जाप करती रही, और इतने फिर सारी पूजा के बाद 5 ब्राह्मणों का भोज भी हम करवा पाए, भोजन उनको करवाया। तो थैंक यू गुरुपा, आप, मुझे ऐसा लग रहा था कि आप मेरे साथ वहां पे थ्रू आउट आप मेरी पूजा करवा रहे थे। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। बिना किसी विघ्न के आपसे घर से आज्ञा लेके मंदिर गई थी कि गुरुपा आप ही करवाएंगे जो करवाएंगे, और आपने इतने प्यार से, इतने अच्छे से, बिना किसी परेशानी के पूरे 2 घंटे की पूजा अच्छे से संपन्न हुई। संगत जी, इसके लिए गुरुपा आपको बहुत बहुत शुक्राना। और उसके बाद फिर हम घर आए वापस, और हमने प्रसाद ग्रहण किया, और गुरुपा का प्रसाद जो बेर है वो भी मैंने वितरित किया। और संगत जी, इतनी बरकत दी गुरुपा ने, जो खीर बनी थी प्रसाद के लिए, वो सबके खाने के बाद भी इतनी बरकत थी कि 40-50 और लोगों में हम ये खीर हमने वितरण किया। हमें बहुत अच्छा लगा। थैंक यू गुरुपा, आपने ये भी कार्य, शुभ कार्य हमसे करवाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी, जो सत्संग है हमारा 7 तारीख को, वो गुरुपा का जो शुभ दिन है, जो गुरुपा ने चुना है, मेरे घर आएंगे गुरुपा, उसके लिए भी अब तैयारी में जुट गई हूँ। और बस गुरुपा से यही अरदास है कि जिस तरीके से गुरुपा आपने रुद्राभिषेक संपन्न करवाया, आप प्रसन्न हैं, और मेरी यही अरदास है कि मेरा जो सत्संग है वो भी गुरुपा आप अच्छे से पार लगवा देना। सारी संगत जिनको भी आपने बुलवाया है वो सब आए, आपकी कृपा ग्रहण करें। बस गुरुपा, बहुत ज्यादा मन में खुशी है कि बहुत दिनों बाद मैं ये सत्संग कर पा रही हूँ। मेरे जितने भी जो दोस्त हैं, जो आपकी संगत हैं, वो सब बहुत खुश हैं, वो आ रहे हैं, उन्होंने कंफर्म भी किया है। बस गुरुपा, अब आपने बेड़ा पार करना है और आके आपने आशीर्वाद देना है, अपना चमत्कार दिखाना है गुरुपा। थैंक यू गुरुपा, लव यू गुरुपा। और एक चीज और बताना चाहूंगी संगत जी, कैसे गुरुपा अपने आप रास्ता दिखा देते हैं। मैं कल शाम को एक पार्लर में, जो मेरी फ्रेंड है जिसके बारे में मैं पहले भी सत्संग में बता चुकी हूँ, मैं वहां बैठी थी शाम को, और आज की पूजा की ही चर्चा हो रही थी। तो वहां पे एक दूसरी और फ्रेंड है, उनसे बहुत महीनों बाद मुलाकात हुई। उनका बड़ा मन है बड़े मंदिर जाने का, और हम गुरुजी की ही बात कर रहे थे, गुरुपा की ही बात कर रहे थे। तो उन्होंने सुना, उन्होंने कहा मैं भी गुरुजी को मानती हूँ और मेरा बड़े मंदिर जाना नहीं हो पा रहा। और देखिए संगत जी, कैसे बात हुई उनसे कि आप, हम सोमवार को जाते हैं बड़े मंदिर, तो वो कह रही हैं आप हमें भी साथ ले चलना। और वो इतनी खुश हो गई कि कैसे गुरुपा ने रास्ता बना दिया। और संगत जी, जब मैंने उनको बताया और उनको इनवाइट किया कि आप हमारे घर जो सत्संग है उसमें आइए, वो बहुत ज्यादा खुश हो गई। उनकी इतनी इच्छा गुरुपा ने कैसे सेकंड्स में पूरी कर दी। उनको सत्संग में भी गुरुपा ने बुलाया,
और मंडे को बड़े दरबार भी बुलाया। तो संगत जी कैसे गुरुपा अपने संगत के सारे भावनाओं का ख्याल रखते हैं। थैंक यू गुरुपा, आपकी महिमा अपरंपार है। आप बेअंत हैं। आप कहाँ से सोचते हैं, कैसे सोचते हैं, आप कैसी कृपा करते हैं गुरुपा। हम छोटे इंसान, हम क्या समझेंगे आपकी मेहर को। तो बस गुरुपा मेरे पास तो इतने सत्संग हैं, मैं आज सोचा कि सब चीज़ याद करके बैठूँगी, आपसे साझा करूँगी ताकि जब शिवाय अंकल मेरा ये सत्संग साझा करे तो और संगत को भी आपकी कृपा मिले और उनके कुछ प्रश्नों के जवाब मिले। लेकिन फिर भी मैं सोच रही थी कि बहुत ज़्यादा सत्संग बड़ा ना हो, तो फिर अगले सत्संग की तैयारी करते हुए जो भी भूल चूक हुई हो सत्संग शेयर करने में, संगत जी तो मुझे माफ़ करिएगा। गुरुपा आप भी माफ़ करिए अगर कोई गलती हो गई हो, और मेरा ये शुक्राना सत्संग आप स्वीकार करें। और वाणी को विराम देते हुए मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। और जल्द ही बाकी जो शुक्राना सत्संग है, बहुत सारे हैं मेरे पास गुरुपा की कृपा से, वो आप सबसे साझा करूँगी। थैंक यू गुरुपा, लव यू गुरुपा। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को मेरा जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु महाराज का किन शब्दों में शुक्राना करूं। गुरु जी ने मेरी कल बहुत रक्षा करी है, बहुत, मैं बता नहीं सकती संगत जी, मुझे मौत के मुंह से बाहर निकाला है गुरु ने। कल संगत जी मैंने अपने पिछले सत्संग में बताया था कि मेरे को गुरु जी ने बोला कि तेरी अरदास मैंने सुन लिया, तेरे को वृंदावन भेज रहा हूँ। तो संगत जी मैं कल वृंदावन गई। सवेरे गुरु महाराज ने उठाया मेरे को, उठते ही गुरु जी ने मेरे को टाइम भी दिया। जहाँ मैं पहले रहती थी वहाँ 1 घंटे का रास्ता है, तो मेरे को बीच में ही मिलना था उनको। 1 घंटा उनको लगना था और 1 घंटा मुझको लगना था यहाँ से। तो संगत जी आप मानोगे नहीं, उससे पहले ही मतलब उनको वहाँ से मतलब निकलने में ही 1 घंटे की लेट हो गए वो। तो संगत जी क्या हुआ, मैंने फटाफट उठ के फटाफट जोत बत्ती करी, करके मैंने भोग बनाया और गुरु पाने से भोग बनवाया उनसे, और मैंने भोग लगाया। और उसके बाद संगत जी मैं यहाँ पे जैसे मैंने कहा चलो भाई मेरे पास टाइम भी मतलब शॉर्ट है तो कुछ है, पर मेरे को टाइम मिल गया। उनको मैंने फ़ोन किया तो अभी उनके पास टाइम था, अभी वो मतलब मिले नहीं थे। सबको जैसे इकट्ठे होती है, हम सारी लेडीज़ ने जाना था। तो संगत जी क्या हुआ, गुरुपा ने मेरे को टाइम मौका दे दिया, जैसे गुरुजी ने करवाना था, तो रास्ते में तो मौका मिलना नहीं था। तो संगत जी मुझे मंत्र जाप करवाया गुरुपा ने, और क्या कहते हैं कि हनुमान जी का पाठ करवाया, और संगत जी और शिव पुराण का पाठ। मुझे लग रहा था कि आज मेरा हो नहीं पाएगा, पर गुरुजी ने करवाया, जैसे बहुत बड़ा कष्ट था। तो संगत जी मेरे हस्बैंड मुझे छोड़ के आए। तो उसके बाद संगत जी क्या हुआ, मैं गुरुजी को बोल के गई थी, गुरुपा आप मुझे लेके जा रहे हो और मुझे लेके आना, क्योंकि सांधी मुझको लेके आना। और गुरुजी ने वो पूरा मतलब एक पिता का उसका पूरा निभाया। कष्ट बहुत बड़ा था संगत जी, बहुत बड़ा कष्ट था जो गुरुजी ने कटवा दिया। तो संगत जी वहाँ पे मतलब पहले तो बांके बिहारी जी के दर्शन किए, स्नेह बिहारी जी के किए, और राधा वल्लभ जी के किए, निधि बन गए। बहुत अच्छा लगा संगत जी। फिर उसके बाद हम यमुना जी में गए, वहाँ पे नाव पे बैठ के संकीर्तन हुआ। 1.5 घंटे का वहाँ पे कीर्तन हुआ। तो संगत जी इतना अच्छा लगा। उनका लाइव भी आता है, राजेश मेरे को नाम नहीं याद आ रहा, राजेश जी करके हैं। तो वहीं पे सन दोनों मतलब लेडी भी हैं, मैं क्या उनकी वाइफ भी है शायद। तो वो मतलब वो करते हैं, सत्संग करते हैं नाव के अंदर ही। तो इतना अच्छा, मैं कहती हूँ संगत जी बता नहीं सकती, इतना अच्छा मतलब हम डूब भी गए थे वहाँ पे। हमने होली मनाई, जैसे
फूलों की होली खेली, इतना अच्छा कीर्तन हुआ। तो गुरुजी ने इतनी अच्छी मेरे को यात्रा ब्लेस करी गुरुपा ने। तो संगत जी उसके बाद क्या हुआ, वहाँ से जब निकले संगत जी, हाँ, पहले मैं आपको बताना भूल गई कि पहले जब हम वहाँ पे अंदर गाड़ी तो जाने नहीं दे रहे थे। हम वहाँ पे जैसे ऑटो में मैंने गुरुजी को बोला था, गुरुजी ऐसा ही ऑटो हो जिसमें नीचे करके हो, मैं उस पे चढ़ जाऊँ, क्योंकि मुझे टाँगों में गुरुजी ने मुझे खड़ा किया। मैं मतलब बस मैं चल ही नहीं सकती थी, मेरे साथ क्या-क्या था। बस मेरे गुरुपा ही जानते हैं, मेरे को बहुत दिक्कतें थी। वो संगत जी फिर मैं मतलब उसमें ऑटो में बैठी, गुरुजी मतलब मेरे को लेके गए वहाँ पे बांके बिहारी जी के मंदिर। तो इन इन बिटवीन क्या हुआ संगत जी कि हम बैठे थे, एकदम से जैसे ऑटो रुका तो एक बंदर आया और उस बंदर ने मेरे सिर के ऊपर से मेरी कैप निकाल ली। तो संगत जी कि सपने में भी मुझे बहुत दिख रहा था कि एक पता नहीं क्या कष्ट था, वो बंदर किस रूप में मतलब मुझे परेशान कर रहा था। मतलब मेरे को ना संगत जी वो बंदर सपने में भी मेरे को पहले सपना भी आया था आज से 4-5 दिन पहले। तो संगत जी मेरे को पकड़ के जैसे पीछे से आ रहा और मेरे यहाँ पे कमर की तरफ मेरे को मतलब वो कर रहा, बड़ा अजीब-सा, बीमार-सा, गंदा-सा, मतलब कहना नहीं, पता नहीं कैसा-सा बंदर था। तो संगत जी मैंने उसको जैसे अपने आप से छुड़वाया, वो छोड़े ना मुझको। तो फिर उसके बाद फिर भी ऐसे हुआ, मैंने पहले सत्संग में ही बताया था। फिर दोबारा मतलब फिर दोबारा वो मेरे पे अटैक करने लगा। तो संगत जी पहले तो ये हुआ वृंदावन में मेरे साथ कि उन्होंने मेरे से मेरी कैब खींची। तो संगत जी जब मैं वहाँ से जब संकीर्तन हम करके वहाँ से निकले संगत जी, तो वहाँ पे क्या हुआ जैसे ही हम बाहर की तरफ आए तो मैं जैसे चल रही थी, मैं बड़े उसमें चल रही थी। मेरे को गुरुजी ने सखियाँ भी इतनी प्यारी दी कि मेरे को हाथ पकड़ के लेके जा रही थी, मेरा बहुत ध्यान रख रही थी। तो इन बिटवीन भी मतलब उनका कोई कसूर नहीं था। जैसे वो बंदर दोबारा ऐसे हुआ कि एकदम बंदर अचानक पता नहीं कहाँ से आ गया। हम वहीं अपनी गाड़ी के पास ही जाने लग रहे थे, घर के नहीं निकल रहे थे। तो संगत जी ये पता नहीं वो बंदर कहाँ से आया अचानक से, वो एकदम से जो मेरे साथ चल रही थी वो थोड़ी-सी ऐसे हुई और उन्होंने ऐसे क्या हुई ये तो किसी को बदनाम करने वाली बात हो गई ना, उनका कोई कसूर नहीं था। मेरे को लगा भई भई उन्होंने उन्होंने जैसे डर गई, उनके हाथ में 3-3 प्रसाद था। वैसे हमने किसी ने प्रसाद नहीं मतलब वो लिया था कि हाँ भई, बंदर होते हैं, हम परेशान हो जाएँगे, तो बहुत बंदर है वहाँ पे। तो संगत जी मतलब उन्होंने प्रसाद घर के लिए भी 3-4 डब्बे ले लिए, वो ले लिए और छुपा-छुपा के वो एकदम से लगा तो उन्होंने एकदम से जैसे मेरे को धक्का-सा दिया, जैसे बंदर आया तो धक्का उन्होंने दिया तो संगत जी ऑन रोड थी। तो संगत जी सामने से बाइक आ रही थी। तो संगत जी मैं ऐसे जाके मेरे को धक्का लगा और मैं ऐसे जाके मतलब बाइक के साथ टकराई जोर के कि बाइक वाले 2 लड़के थे वो वहाँ पे गिरे और मैं इधर गिरी। हालाँकि मुझे डॉक्टर ने बिल्कुल स्ट्रिक्टली मना किया है कि आपको झुकना नहीं है, आपको क्योंकि पहले भी आप कभी गिरे हैं? तो मेरे को डॉक्टर ने बोला था, मैंने कहा पता नहीं मुझे याद नहीं, कहते आपके 3 लिगामेंट टूटे हुए हैं, तो अपना ध्यान रखा करो। तो ऐसे-ऐसे आपका हम जैसे ऑपरेशन भी मेरा मना कर दिया था डॉक्टर ने। तो कहते हैं घुटने को हम आपके लिगामेंट कैसे जोड़ें? आपके घुटने तो 3 दोनों खराब है। और गुरुपा पता नहीं कैसे मतलब ऐसे घुटनों में से मुझे कैसे चला रहे हैं गुरुजी, पता नहीं कि मेरे को कहते तेरी रिपोर्टें मैंने बदल दी गुरु महाराज, मतलब बहुत कृपा कर। तो उस समय जी मतलब मैं ऐसे गिरी जोर के, मेरा पर्स किधर और मैं किधर, मेरा दुपट्टा किधर और मैं ऐसे बाइक का जो इतनी जोर के मतलब बाइक का जो हैंडल होता है वो मेरे पेट में इतनी जोर के गड़ा और मैं जोर के जाके पीछे और बाइक वाले उतर गिरे। तो संगत जी बाइक वाले बेचारे डर गए कि वो कहते हमने कुछ नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया, उनका कोई कसूर ही नहीं था। तो संगत जी बहुत बड़ी विपदा थी। गुरुजी मुझे कह ही रहे थे ब्लैक मैजिक करने वाले थे, पीछे बहुत हमारे पीछे पड़े, मारन क्रिया करवाते हैं, बहुत तंग कर रहे हैं। तो संगत जी मैं इधर इस साइड मतलब जब गिरी बहुत ही मैं उठ भी नहीं पा रही थी, क्योंकि मुझे जब मैं उठी नीचे बैठना ही मुझे अलाउ नहीं है। मैंने आज तक आज 3-4 सालों मैं मतलब नीचे बैठ ही नहीं सकती बिल्कुल भी। तो मतलब 3-4 साल तो अब हो गए। जब मैं कंबल खा लो कि उससे पहले से टाँगों में मतलब सियाटिका की वज़ह से मैं नीचे नहीं बैठ सकती, उससे पहले भी नहीं मैं नीचे बैठती थी। तो संगत जी सियाटिका तो मुझे अब हुई है 3 साल से। तो संगत जी ऐसे इतनी ज़ोर की गिरी कि मैं किधर और किधर, मतलब फिर मेरे को उठाया वो किया तो
बहुत मुश्किल। और मेरे को आपको क्या बताऊँ संगत जी, ऐसे लग रहा था उस समय, महसूस हो रहा था कि मुझे कुछ नहीं, गुरुजी ने बहुत बचा। और सच में संगत जी बस एक आधी गोली मैंने ली कि अंदर थोड़ा दर्द मुझे लगने लगा। मैं कहा गुरुजी, आपको मैंने बोला था मतलब सुखी शांति लेके आना, सुखी शांति, और गुरु महाराज मुझे सुखी शांति लेके आए। बस एक गोली में ही मेरा काम हो गया और मैं ठीक हो गई। मुझे थोड़ा बहुत दर्द है वो तो चला ही जाएगा गुरुजी, वो भी कर देंगे, पर मेरे को कुछ भी नहीं है संगत जी। नहीं तो क्या हो सकता था, बाइक वाले मेरे को लग रहा था अब मेरी मौत मेरे सामने है। इतनी मतलब बाइक आ रही थी इधर से, मैं और ऐसे धक्का लगा कि मैं पूरी बाइक है और बाइक इधर में होता। तो बस आप देखो संगत जी, मेरे जो हस्बैंड है मुझे कहीं जाने भी नहीं देते, इसीलिए वो मेरे को अपने साथ ही लेके जाते हैं। वो देखते हैं कि तेरे को इतनी तकलीफ है, मैं कहीं नहीं जाने दूंगा। मैंने जिद करके गई उनके साथ, मैंने कहा नहीं मुझे जाने दो, मेरा बहुत मन है अपनी सहेलियों के साथ जाने को। तो संगत जी गुरु जी का अनंतम शुक्राना, अनंतम। मैंने अपने हस्बैंड को बिल्कुल भी नहीं बताया कि मेरे साथ ये हुआ है। तो अभी भी पेट में, पेट की साइड पे जहाँ पे मुझे वो लगा था, मेरे को पेट में लग रहा है साइड में, स्वेलिंग भी आई हुई है और मुझे पता मैं ठीक हो जाऊंगी जल प्रसाद से। तो मतलब संगत जी ऐसी इतनी बड़ी विपदा थी तो कुछ भी हो सकता था। आप देखो ऑन दी रोड है और वहाँ पे जैसे बाइक भी आ रही थी पीछे से, गाड़ी भी होती तो शायद मैंने बचना ही नहीं था बिल्कुल भी। गुरु महाराज ने बहुत रक्षा करे, बहुत रक्षा। वो सीढ़ियाँ करती है ना संगत जी, रोकते खड़े हो जाते हैं। गुरु जी ने मेरी बहुत रक्षा करी, बहुत ज्यादा। मारने वालों ने कसर नहीं छोड़ी और बचाने वाले ने इतनी कृपा करी। गुरु जी मुझे, गुरु जी के मैसेज भी जैसे आते हैं कि तेरा बाल भी कोई बांका नहीं कर सकता, ठीक है, मेरे होते हुए तेरा कुछ नहीं हो सकता, तेरे को कोई वो नुकसान नहीं पहुंचा सकता, तेरी और तेरी फैमिली को। वाकई संगत जी गुरु महाराज बहुत रक्षा कर रहे हैं, बहुत ज्यादा रक्षा कर रहे हैं। तो जोर पीछे से पूरा लग रहा है कि कोई ना कोई बीमारी, कोई ना कोई दिक्कत से इसको बस ये मर जाए। और गुरु जी बहुत कृपा करे। अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरु महाराज का, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। और संगत जी अगला सत्संग जो है वो मेरी मम्मी का है। मेरी मम्मी के बारे में मैं बताया था, मम्मी बीमार चल रही थी, तो अब जैसे मम्मी कह रही थी मैंने सत्संग करना है, तो मम्मी के घर में गुरुजी आप देखना कब सत्संग करवाना है। और जैसे मम्मी का परसों मेरे को वो फोन भी आया कि मैं ना भाई मंडे को भी तेरे को बताऊं, मैं मंडे को बड़े मंदिर हो आई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 गुरु का। तो मेरे गुरु महाराज ने मम्मी को बुलाया, उनको लंगर प्रसाद करवाया, बड़ी कृपा हुई मेरे महाराज की। तो मेरी मम्मी तो मतलब मम्मी कहती है मेरे को ऐसे लगता है कि मैं जैसे गुरु महाराज मैं आपके वहाँ घर पे कैसे आऊँ, वो जैसे मुझसे स्टिक से चलती हैं। कहते हैं भाई मेरे को बहुत औखा लगता है, शरीर भी भारी है उनका। तो कहती मेरे को पता ही नहीं चलता कि गुरुजी कैसे बुला लेते हैं अपने पास। तो बहुत कृपा करता है गुरुजी, बहुत संभाल रहे हैं, बहुत ज्यादा। अभी भी गुरुजी का सत्संग आया, मैं सुन नहीं पाई, अभी सुनूंगी। मतलब तेरा मेरा बड़े, तेरे को पता ही नहीं है कितने, मतलब तेरा मेरा क्या रिश्ता है, कितने जन्मों का रिश्ता है। और तू मतलब सत्संग कर, मैंने सत्संग करना था तो कहते हैं कर, और मतलब मैं कष्ट में हूँ ऐसे करके। तो मैंने कहा गुरु जी अपने से कहते तेरे सारा कष्ट मैंने अपने ऊपर ले लिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। क्षमा चाहती है आपकी बेटी कि कल मैं आपका सत्संग शेयर नहीं कर पाई, इसीलिए बेटी आपसे क्षमा मांगती है। ये छोटा सा पहले रविवार का शुक्राना है, तो ये शुक्राना है कि, और ये कल रविवार था और मकर संक्रांति थी। गुरु पा ने कहा था कि मुझे हर वक्त कड़ा प्रसाद का भोग लगा देना, तो कल भी मैंने कड़ा प्रसाद का भोग लगाया और कल गुरु पा ने अमृत वेला भी कराया। बीच बीच में पता नहीं क्या होता है कि मेरा छूट जाता है, वह गुरु पा मुझे अमृत वेले की आप दात बख्शे रहना, अपनी कृपा बनाए रखना। कल मैंने अमृत वेला संभाला, इसलिए अनंत शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना।
गुरुपा ने बड़े अच्छे से कराया। अमृत वेला करके फिर मैं मंदिर भी गई। मंदिर में जाकर मैंने शिवालय पर जल चढ़ाया, दिया जलाकर आरती करी और शिव चालीसा करी। हनुमान जी पे, काली माता पे भी दिया जलाया और विष्णु भगवान, माता लक्ष्मी पे भी सामने दिया जलाया। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। गुरुपा ने बड़े अच्छे से ये सारे कार्य करवाते हैं और हर पल में अपनी मेहर करते हैं। गुरुपा ने 2 लड़की आई कल, मैं आई तो जब गुरुपा ने 2 लड़कियां आई, उन्होंने कहा आंटी खाना खिलाया था, तो उनको भी मैंने जो मेरी सब्जी बनी हुई थी उनको उनके साथ खाना खिला दिया उनको। तो शुक्राना गुरुपा ये भी आप करवाते हैं किसी के भाव में जाते हैं। तो गुरुपा ने कहा था कि शनिवार के दिन आपने मतलब ये माँ उड़न सत्संग में सुनवाया था कि शनिवार वाले दिन आपने कि उसका दान करना है, या काले तिल का या उड़द की दाल का। तो मैंने जो आते हैं मांगने के लिए, तो मैंने उनको मेरे पास उड़द की दाल पड़ी थी साबुत, तो वो मैंने उनको दे दी मांगने वाले को। शुक्राना मेरे गुरुपा ये सारे करवाने का शुक्राना, कोटि कोटि अंतर शुक्राना। गुरुपा ने वो जो मांगने आते हैं, कल भी आया था मकर संक्रांति वाले दिन। वो कल, क्योंकि वो माघ पूर्णिमा थी उसमें कल वो आए। तो माघ पूर्णिमा पे उन्होंने कहा कि मुझे मेरी बेटी की शादी है, तो कुछ दे दो। तो मैंने उसको एक कहा कुछ चद्दर दे दो, कुछ दे दो। मैंने उसको एक न्यू चद्दर, जो वो उसको बेटी की शादी 11 तारीख की है, तो मुझे देना। तो मैंने उनको वो एक बैग से निकाल कर एक चद्दर उनको दी। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा, किसी की बेटी की शादी हो, कुछ भी हो, गुरुपा भाव डालते हैं कि कैसे किसी की मदद की जाए। इसलिए गुरुपा का अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। गुरुपा ने ये कार्य भी बड़े अच्छे से करवाया, इसके लिए लाख लाख करोड़ों बार शुक्राना शुक्राना। तो उसने बहुत अच्छी ब्लेसिंग दी, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। और गुरुपा के इतनी अच्छी से एक वो आई कि जैसे भाव कहते गुरुपा, कल मैं आपका सत्संग शेयर नहीं कर पाई क्योंकि घर में कम से कम 10-11 गेस्ट आए हुए थे। मेरी जो बड़ी सिस्टर बीमार है वो भी आ गई। फिर मैं गई थी, तो उसका मेरी भांजी का फोन आया कि मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, तो रास्ते में तो वो घर पे आई। वो सारे आए, बच्चे भी थे उनके, बेटा और बहू जो न्यूली मैरिज है। वो मेरी उधर से भाभी भी आई, भतीजा वो भी न्यूली मैरिज है। दोनों कपल्स आए, तो कम से कम 9-10 मेरी बेटी भी थी, सब सारे आए। तो गुरुपा ने बहुत अच्छे से उनको कार्य करवाया मेरे से, और मैंने खाना वाना रात का करती रही, लगी रही। गुरुपा ने मुझे देखते रहते हैं वे मेरे। तो गुरुपा ने देखा कि उनकी बेटी बिजी है, लगी हुई है, कम से कम रात को 1 बजे के करीब हो गए हैं। तो इसलिए गुरुपा मैं सत्संग शेयर नहीं कर पाई। आपकी बेटी कान पकड़ के क्षमा मांगती है, क्योंकि सत्संग जो मेरे गुरुपा के रोज बनते हैं, रोज होने चाहिए। गुरुपा हर पल मेयर करते हैं, हर पल अंग संग काये रह के रक्षा करते हैं। तो मैं वो उसकी मेरी बहन की टांगे बहुत दर्द हो रही थी, तो उसको कैंसर डिटेक्ट हुआ है। गुरुपा उसको ब्लेस करना, गुरुपा उसके पे कृपा करना। तो वो बहुत परेशान थी, तो वो टांगे बहुत दर्द हो रही थी। तो मैंने उसको कह दी टांगे बहुत मेरी टूट रही है। परसों उसकी कीमो हुई, तो मैंने उसके पेट में से उसके 2.5 लीटर पानी निकला। तो वो दर्द हो रही थी, मैंने उसके पूरी बॉडी में, उसकी टांगों में मालिश करी। गुरुपा का जो तेल पड़ा है मेरे पास, उसमें मिला के चंदन प्रसाद उतार के उसके तेल की टांगों की मालिश करी। गुरुपा ने भाव डालते हैं कि किसी की चाहे कोई दुश्मन भी हो, उसकी मदद कैसे की जाए, क्योंकि हम गुरुपा की बेटी हैं।
और गुरुपा हर कहते हैं किसी की भी मदद करो। कोई जो घर में आता है वो मेहमान होता है, वो किस रूप में आए हम नहीं जानते, इसलिए गुरुपा अपनी कृपा बनाए रखना, मेरे में भी भाव डालने रखना। खाना वाना बनाकर वो बच्चे गए, 1 बजे के करीब गए गुरुपा। गुरुपा ने आज सोमवार है, तो अमृत वेले में मुझे नहीं उठाया, क्योंकि मैं कम से कम 2 बजे के 2 बजे बस वही गुरुपा का सत्संग सुना जो रात को आता है, शिवाय अंकल वाला, गुरुजी महाराज का। तो वो भी मैंने सत्संग सुना। शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा आपका कोटि कोटि नमन। शिवाय अंकल आपका भी बहुत बहुत शुक्राना जो हमारा सत्संग शेयर करते हैं आप। अनंत अनंत शुक्राना। गुरुपा से हमें कनेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं। गुरुपा आपको ब्लेस करें, हमेशा ब्लेस करें। गुरुपा आज सोमवार है, मेरे शिव का, मेरे गुरुपा का वार है। गुरु ही मेरे शिव है, मेरे पिता भी माता भी हो, बंधु सखा गुरुपा। मेरे गुरुपा ने आज मंदिर लेकर गए, मंदिर में भी मेरे से जल चढ़वाया शिवालय पे, और दिया जलाया पीपल पे भी, क्योंकि मंदिर में निर्माण हो रहा है, फिर थोड़े से चलने में दिक्कत होती है, पर अब थोड़ा थोड़ा हो रहा है। बाकी गुरुपा लेके जाते हैं शिवालय में, दिया जला के आरती करी, मंदिर से आई। मंदिर से आकर मैं जो जल लेकर आती हूँ पूरे घर में छिड़कते हैं। गुरुपा कहते छिड़कना चाहिए, इसलिए गुरुपा का अनंत अनंत शुक्राना। गाय माता को रोटी और गुड़ देने का भी शुक्राना। गुरुपा ने बड़े अच्छे तरीके से आज भी जो भी सेवा करवाते हैं, इसके लिए भी अनंत अनंत शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। मैंने गुरुपा ने कहा था कि आज मुझे उसका भोग लगाना, कचौरी का। और गुरुपा सत्संग सुनवा के हमारे कष्ट काट रहे हैं। तो मेरी बेटी अंकल को भी परसों इतनी एनर्जी हो गई थी, पूरी बॉडी पे दाने दाने हो गए थे। तो मैंने मंत्र जाप करते हुए गुरुपा का जल प्रसाद लगाया, दवाई भी दी पर जल प्रसाद लगाया। तो आधे में खारिश हुई बड़ी, उसको ठीक हो गई। इसके लिए भी अनंत अनंत शुक्राना शुक्राना। गुरुपा का मंत्र जाप में तो इतनी है, वो है डिवाइन है मंत्र जाप, इतनी पावरफुल है कि गुरुपा हर कष्ट काटते हैं मंत्र जाप के जरिए। गुरुपा एक नेगेटिविटी आ जाती है, मंत्र जाप में बैठने लगती हूँ, करती हूँ मैं। गुरुपा ने सत्संग में सुनवाया था कि कहीं भी बैठकर आप, चाहे बेड पर बैठो चाहे गुरुपा के सामने बैठो, तो गुरुपा का स्वरूप आगे रखकर, फोन के अंदर हो कहीं भी हो, निकाल कर उनके सामने बोलो, बेटे का नाम लो, किसका भी ले लो, बेटे का नाम लो। और बेटे के नाम के लिए अगर आपको कष्ट है, इस पे नाम लेके उसके फोटो अभी शक्ल ध्यान में रखकर उसकी, तो आपने 7 बार ये मंत्र जाप करना है। तो गुरुपा ने वो भी कराया। ओम नमः शिवाय शिव जी का, ओम नमः शिवाय गुरु जी का 7 बार करवा के गुरुपा ने ये करवाना था, 108 बारी मंत्र जाप करना था ये। इसके लिए भी अनंत अनंत शुक्राना। एक बार 108 नाम की माला का मंत्र जाप करना था, तो वो भी मैंने ये वाला करा, बैठ के बेड पे बैठी हुई रात को, बैठे बैठे ही मैंने ये करा था भाई। तो गुरुपा ने बताया था इससे कष्ट कटेगा। और गुरुपा के आगे बोलना है कि गुरुपा मेरे बेटे का ये कष्ट है, इसको काटो। इसके लिए भी अनंत अनंत शुक्राना। गुरुपा 2 लोग और एक कपूर का भी करते हैं कि शाम के टाइम एंटी क्लॉक मार कर जलाना है, इसके लिए भी अनंत अनंत शुक्राना। और घर में जो जल प्रसाद है इसको छिड़कना, इसके लिए भी अनंत अनंत शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, लाख करोड़ों बार शुक्राना। गुरुपा सब करवाते हैं, इसके लिए अनंत शुक्राना। वो कैंसर के जो सत्संग सुनवा रहे हैं, कष्ट कटवा रहे हैं, इसके लिए भी अनंत अनंत शुक्राना। और यूट्रस में इन्फेक्शन के भी सुनवा रहे हैं,
तो सत्संग सुनवा के हमारे कष्ट करा चले हैं, इसके लिए अनंत अनंत शुक्राना शुक्राना। एक बाबा आए, कहते हैं कि शाम के टाइम मुझे थोड़ी सी चीनी दे दो, चाय पत्ती दे दो। हमने उसको चीनी डाल के दे दी, बस वो रुपया इतना ही कर पाई। शुक्राना शुक्राना, मन अंदर भाव डालने का और सबके कार्य करवाने का अनंत अनंत शुक्राना 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 शुक्राना, लख लख करोड़ों बार शुक्राना। कुर्बानी बड़े अच्छे से सारे करवा रहे, कार्य करवाए। कोटो खाए, कोटो शुक्राना। रूपा अपनी बेटी से उठा नहीं जाता सुबह, और कहते हो कार्य करना है, और आप करवा भी दो अपने कार्य, लड़के कार्य करवा रहे हैं। मैं इसको कुछ भी बोलने में गलती हो, सत्संग शेयर करने में आपकी बेटी क्षमा मांगती है। तो गुरुपा आप कार्य करवा भी रहे हैं मेरे से, मेरी कोई औकात नहीं मैं कुछ कर पाती, पर आप करवा रहे हैं, इसके लिए भी शुक्राना है आपका, अनंत अनंत शुक्राना है। कुछ को शुक्राना मेरे भाई की तरफ से शुक्राना है, उसको भी आपने न्यू लाइफ ब्लेस करी है, और उसके काम के भी उसके करा है, काम भी दिलाया उसके लिए अनंत अनंत। वो काफी टाइम से खाली बैठा था गुरुपा, उसको ब्लेस करने का शुक्राना, काम दिलाने का शुक्राना, अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना। गुरुपा अपने अंग संसाय रह के हमारी रक्षा करने का शुक्राना, और आप ही आपके भरोसे बैठी हूँ गुरुपा, मैं उपाय नहीं कर पा रही। आपकी बेटी कान पकड़ कर क्षमा चाहती है, मैं उपाय नहीं कर पा रही, मैं कर भी नहीं पा सकती गुरुपा। पर गुरुपा अब घर में 2 शादियां आ रही हैं, एक 5 तारीख की, एक 15 तारीख की गुरुपा, वो भी करनाल में है, इस बार है। गुरुपा आप ही चलना, और आप ही लेके जाओगे, आप ही लेके आओगे। गुरुपा मैं कल आपका शुक्राना कर, बस आप अपने कार्य करवाते रहना, अनंत अनंत शुक्राना। मेरा नीम करोली बाबा का, मेरे पितरों का शुक्राना, मेरी नीम करोली मेरी माता रानी कुलदेवी माता का शुक्राना शुक्राना। सुंदर पाठ पाठ करवाने का शुक्राना, सुनवाने का शुक्राना। गुरुपा जब जी पाठ करवाते हो मेरे को बोलना नहीं आता, तो गुरुपा मैं सुन लेती हूँ फोन पर, इसके लिए भी अनंत रहरास का भी और सुखमनी पाठ का भी सारे पाठ मैं सुन लेती हूँ फोन पर चलाकर। इसकी कोटि कोटि अनंत शुक्राना। गुरुपा शिव पुराण भी मेरी कंप्लीट होने वाली है, पूरी होने वाली है, और कृपा आप ही करवाएंगे, और आप सब करवाने का शुक्राना है। आप ही करवा रहे हो, पर बस थोड़े से रह गई है, और ये मेरी तीसरी बार का होगा जो संपूर्ण हुई, इसलिए अनंत अनंत शुक्राना। अब मैं अपने सत्संग को विराम करके अगले सत्संग की तैयारी के साथ, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना गुरु। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साहिब नमः शिवाय, गुरु जी सदा साहिब नमः शिवाय, शिव जी सदा साहिब नमः शिवाय, गुरु जी सदा साहिब नमः शिवाय, शिव जी सदा साहिब नमः शिवाय, गुरु जी सदा साहिब। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय शिवाय अंकल जी जो मेरा सत्संग शेयर करते हैं। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी मालिक आपको हेल्दी वेल्दी लाइफ ब्लेस करे, हमारे और आप सबके, और शिवाय अंकल जी आपके सारे संकट गुरु जी मालिक दूर करें। ये मैं गुरु जी की बेटी जालंधर में पैदा हुई, हिमाचल में मेरी शादी हुई। बहुत बहुत दिनों से गुरु जी मालिक का रोज सत्संग में सुनवा रहे हैं, बोल रहे हैं थंबनेल में कि शुक्राना कर, शुक्राना सत्संग शेयर कर। आलसी हूँ गुरु जी मालिक, मैं आपकी आलसी बेटी हूँ। शुक्राना सत्संग टाइम पर नहीं करती शेयर, शुक्राना नहीं करती। हाँ, आपके स्वरूप के आगे हर चीज़ का शुक्राना मैं उसी वक्त कर देना चाहती हूँ, क्योंकि मानती हूँ आजकल तो मैं जब घर का सारा काम भी कर लेती हूँ तब भी शुक्राना करती हूँ, क्योंकि पहले मान होता था कि मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, ये हो गया मेरे से, मैंने इतना काम कर लिया झट से। लेकिन अब मुझे समझ में आ गया कि गुरुजी मालिक आपने जो अंग दिए, आपने ये हाथ पैर दिया, आपने ये शरीर दिया, ये सब कुछ आप करवाते हो।
आप ही से है सब कुछ और मानते हो गुरुजी मालिक संगत जी, जब मैं मन ही मन बोलती हूँ गुरुजी मालिक को आज मैं लेट हो रही हूँ, जल्दी से करवा दो, तो काम पहले से भी कई गुना ज़्यादा जल्दी में हो जाता है। शुक्राना गुरुजी मालिक, शुक्राना। ये सेवा लेने के लिए, सेवा करवाने के लिए, ये सेवा दी है जो आपने, शुक्राना गुरुजी मालिक, शुक्राना। शुक्राना सत्संग गुरुजी मालिक। आज पहले सुबह का कर दूं मैं, आज थर्सडे है, वीरवार है, बोलते गुरुजी का वार होता है, गुरुजी का वार को सत्संग शेयर ज़रूर करना चाहिए, हालाँकि रोज़ करना चाहिए। ये आज बहुत दिनों बाद गुरुजी मालिक जो आपने सेवा दी हुई है गुरुवार को सत्संग करने की, अकेले 1 घंटे का करती हूँ, लेकिन काफ़ी गुरुवार से हो नहीं पा रहा था। आज करवाया गुरुजी मालिक आपने, तो मैंने आपको मन ही मन पूछा कि मुझे बाज़ार जाना था, तो पहले क्या करूँ? सत्संग शेयर कर लूँ, सत्संग कर लूँ कि बाज़ार जाऊँ? तो आपने सत्संग में सुनवाया कि पहले सत्संग कर। और जैसे आपके सत्संग के लिए चाय, ज़्यादा कुछ नहीं किया, चाय और कड़ा प्रसाद बनाया। जैसे चाय बना रही थी तो मैं, आपको पता है आपकी आलसी थी, भुलक्कड़ भी है। चाय बनाई तो साथ में मैं सोनू अंकल जी का सत्संग सुन रही थी जो 7 PM का कल का। तो गुरुजी, उसमें गुरुजी मालिक ने सुनवाया कि तू मतलब किसी के कोई किसी का सत्संग होता है कि वो सोचती है कि मन में चाय बनाती, तो आप बताते नहीं कैसी बनी है। तो गुरुजी बोलते हैं कि चाय तेरी बहुत ही मीठी और बहुत ही स्वाद बनी। तो एकदम से याद आ गया, मैं किचन लॉक कर रही थी क्योंकि किचन हमारा रूम से, हमारे बेडरूम से दूर पड़ता है। तो जैसे कि जॉइंट फैमिली है तो मैं एतबार नहीं करती, क्योंकि बहुत कुछ हो चुका है ऐसा, तो वो मैं शेयर नहीं करूँगी क्योंकि बहुत कुछ डाल के खिलाया गया हमें। शॉर्टकट में बता देती हूँ, तो इसलिए किचन लॉक करके मैं आराम से सत्संग करना पसंद करती हूँ कि टेंशन नहीं रहे किचन की। तो जैसे ही किचन लॉक करने लगी तो याद आया चाय तो बन गई, चाय में तो शक्कर डाली नहीं। तो फट से किचन खोला और शक्कर डाली और चाय गुरुजी को वो लगाया और फिर खुद भी पिया। शुक्राना मालिक, शुक्राना सत्संग की सेवा लेने के लिए, सत्संग की सेवा करवाने के लिए शुक्राना। आज बाजार आप लेके गए, आपने शॉपिंग करवाई जो थोड़ी सी, उसके लिए भी शुक्राना मालिक, शुक्राना। बाकी मेरे जो गुनाह हैं, मेरी जो गलतियां हैं गुरुजी मालिक, जो आप जानते हैं, मैं किस लिए माफ़ी मांग रही हूँ, तो सॉरी गुरुजी मालिक, सॉरी सॉरी सॉरी। शुक्राना सत्संग गुरुजी मालिक, शुक्राना गुरुजी महाराज, शुक्राना। ये सत्संग डेट और दिन मुझे याद नहीं, मैंने लिख के रखा है क्योंकि गुरुजी मालिक काफ़ी दिन से सत्संग किया नहीं और मैं भूल जाती हूँ फिर, तो इसलिए उस दिन बैठे बैठे लिख लिया था। मैं आपकी आलसी दी हूँ, सत्संग टाइम पर नहीं करती हूँ, अब करती हूँ, बाद में करती हूँ। ये शुक्राना है कि कितने दिनों से बटरफ्लाई रूप में दर्शन नहीं आपके हो रहे थे। हालांकि जब से आपसे जुड़ी हूँ तो ऐसा कोई दिन नहीं होता, दिन से रात हो जाती है, बटरफ्लाई आगे पीछे घूमती है, दर्शन देते, पर काफ़ी दिनों से बटरफ्लाई के रूप में दर्शन नहीं हो रहे थे। तो मन ही मन गुरुजी, मैंने आपको बोला भी कि नाराज़ हो या कोई मेरे से गलती हुई है तो आप दर्शन नहीं दे रहे हो, क्योंकि आपका बटरफ्लाई के रूप में पहरा भी हमारे वॉशरूम की साइड बरामदे में लगा रहता था, तो अब तो पहरा दूर, आपके दर्शन नहीं हो रहे। ये मैंने मन ही मन आपको बोला था। तो पिजन के रूप में आप दर्शन दे रहे हो आजकल, हफ्ता हो गया गुरुजी मालिक। गुरुवार के दिन 3 पिजन ने और फ्राइडे को टोटल 8 पिजन, जिसमें से 1 पिजन वाइट था। मैंने अपनी लाइफ में वाइट पिजन पहली बार दर्शन किए, हालांकि आपसे जब से जुड़े हैं तो टीवी में कई बार आपने दर्शन करवाए, लेकिन लाइफ में पहली बार मैंने वाइट पिजन के दर्शन किए, जो कि हफ्ते भर से डेली एक वाइट पिजन होता ही होता है, बाकी ग्रे होते हैं। तो शुक्राना मालिक, पिजन रूप में वाइट पिजन, ग्रे रूप पिजन के रूप में दर्शन देने के लिए शुक्राना, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। टीवी में तो मैंने कई बार देखा, हाँ लाइफ में पहली बार मैंने वाइट पिजन पहली बार देखा है। ये शुक्राना 17 जन का है, गुरुजी के नाती का बर्थडे था। गुरुजी उसको खूब सारी हल्दी वल्दी लाइव ब्लेस करें, उसकी सारी खुशियाँ उसे दें, उसे उसकी मनोकामना पूर्ण करें। अच्छे से पढ़े लिखे गुरुजी मालिक, अच्छे से सुबह आपने उस दिन बर्थडे की पूजा करवाई अपने नाती के। पता है गुरुजी, जब आपने नाती दिया था हमारे पास उस टाइम उसके बर्थडे करने के पैसे नहीं हो पाते थे। ये बाद में कई साल लग गए हमें पता लगने में कि घर के जेठ जेठानी थे जिन्होंने हमारे काम से लेके, हर रिश्ते से लेके हर चीज़ बंधवाई हुई थी। तो बड़ी मुश्किल से थोड़े दिन पहले उसके बर्थडे आने वाला होता था तो टेंशन हो जाती थी कि बर्थडे कैसे होगा, क्योंकि तब हमारी जॉइंट फैमिली थी बहुत, ये सब कम से कम 20-25 मेंबर होते थे। सबका बर्थडे में सबको खाने पीने से लेके पूजा का ये सब कुछ अरेंजमेंट करना होता था। लेकिन इतनी, आज मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ तो आज सोचती हूँ कि इतनी कृपा हो जाती थी कि गुरुजी मालिक बर्थडे से 2 दिन 3 दिन पहले या 1 दिन पहले इनको काम मिल जाता था और बर्थडे अच्छे से, जितना कि अच्छे से हो पाता अच्छे से हो जाता था गुरुजी मालिक। जैसे कि नाक रह जाती थी हमारी, लाज रह जाती थी। तो आज सोचती हूँ कि तब भी आप साथ में थे, हालांकि हमें नहीं पता था, लेकिन जेठ जेठानी ने बहुत गंदा किया हुआ था, जो कि बहुत साल लगे पता लगने में।
कि इतना कुछ उन्होंने किया हुआ था। ये शुक्राना सत्संग गुरुजी मालिक ये कि इतने सालों बाद हुआ ये कि आपका नाती का बर्थडे जैसे हम मनाना चाहते थे, हालाँकि वैसे अभी नहीं हुआ क्योंकि हमारा अभी तक अपना घर खुद का घर नहीं हुआ। अभी हम सास-ससुर के दिए हुए जो पोर्शन हमारे हिस्से में है छोटा-सा उसी में करते हैं। अभी हमें जो कि बहुत बड़ा हो जाएगा बताने लगूँगी क्योंकि हमारी फैमिली में सबके साथ जो अनबन है, जो किस कारण है वो आपको पता ही है कि ये किराए के कारण या जो भी सबने हमारा जो हमारे साथ गलत किया या ऐसे कह लो कि आपने सबको हमसे दूर किया हमारे भले के लिए। तो अब घर में हम बर्थडे मना नहीं सकते गुरुजी मालिक क्योंकि हमें इसलिए बर्थडे आपके नाती का बर्थडे मनाने के लिए हमें बाहर जाना पड़ता है। लेकिन गुरुजी मालिक वो दिन सबसे हसीन होगा गुरुजी मालिक जिस दिन आप बोलते भी हो आप तेरा खुद का घर, गाड़ी, दुकान सब होगा। आपने बोल दिया आपकी बात पत्थर पे लकीर है ज़रूर होगा। उस दिन हमें ऐसा भटकना ना पड़े गुरुजी मालिक। हालाँकि हाँ, बाहर बर्थडे भी मनाते हैं गुरुजी मालिक लेकिन मुझे पसंद है कि घर में मनाएँ हम। फिर चाहे बाहर जाएँ, लेकिन घर में केक कट करने को एक जगह नहीं होती गुरुजी मालिक। मतलब ऐसा माहौल नहीं बन पाता गुरुजी मालिक क्योंकि सब होते हैं तो आप समझते हो मैं जो कहना चाहती हूँ गुरुजी मालिक। बाकी समझे ना समझे आप समझते हो, आप सब देखते हो गुरुजी मालिक। लेकिन हाँ, फिर भी इस बार आपने अपने नाती का बर्थडे काफ़ी अच्छे से मनाया। सुबह पूजा हुई, उसके बाद आप मंदिर लेके गए, हम बगलामुखी माता मंदिर दर्शन करने के लिए गए। उसके बाद कार्निवल लगा था हमारे कांगड़ा में, फिर कार्निवल देखा। उसके बाद डिनर के लिए लेके गए गुरुजी मालिक। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना क्योंकि इतने सालों से जो हमारे काम का हाल था वो हमें भी पता, आपको भी पता गुरुजी मालिक इतने पैसे नहीं होते थे। लेकिन इस बार फिर भी आपने अच्छे से अच्छा बर्थडे अपने नाती का सेलिब्रेट करवाया, उसके लिए शुक्राना मालिक। अनंतम अनंतम शुक्राना मालिक। ये शुक्राना मालिक आपके नाती नातिन की तरफ से है क्योंकि वह वैष्णो देवी यात्रा पर गए हैं गुरुजी मालिक। उनके मामू उनको हालाँकि मैं भेजना नहीं चाहती थी नाती को तो फिर भी भेज देती। नातिन के पेपर लगने वाले थे तो मैं भेजना नहीं चाह रही थी और वो क्योंकि छोटी है तो चल बहुत ज़्यादा हेल्दी हो गई है गुरुजी मालिक। प्लीज़ उसको हेल्दी-वेल्दी लाइफ ब्लेस कीजिए। बहुत-बहुत हद से ज़्यादा मोटी हो गई है गुरुजी मालिक। प्लीज़ कृपा करें गुरुजी मालिक। और उनके मामू लेकर गए हैं गुरुजी। उनके मामू को खूब ब्लेस करना क्योंकि उसने आगे भी हमें ये यात्रा सबको करवाई थी। यात्रा सुखद करना मालिक। खुशी-खुशी जाएँ और खुशी-खुशी आएँ। आपके साथ ये सत्संग मैं लिख रही हूँ क्योंकि ये मेरा व्हाट्सएप नहीं चल रहा गुरुजी मालिक। ये मैंने लिख के रखा है गुरुजी मालिक कि मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ, पहले का लिख के रखा हुआ है। तो आज 25 संडे है। आज गुरुजी ने कीर्तन में भी भेजा और लंगर भी करवाया हमारे पास ही में जो ये अयोध्या में श्री राम जी का मंदिर बना था तो 3 साल आज हो गए। तो तीसरे साल का ये कीर्तन जो है गाँव वाले मिलके करवाते हैं। साथ में मंदिर है घर के पास में और घर के सामने लंगर लगता है तो आपने अब कीर्तन में भी लेके गए और लंगर भी छकवाया। उसके लिए शुक्राना मालिक। शुक्राना आपके जुआई की तरफ से और आपके नाती नातिन की तरफ से शुक्राना मालिक। और सबसे पहले शुक्राना कर दूं कि ये मैं शुक्राना लिख के रखा है मैं लेकिन आज कर रही हूँ। आज गुरुवार को आज 29 है। आपके नाती नातिन 28 को यानी कि कल शाम को 5 बजे घर आ गए थे। शुक्राना मालिक। इतनी अच्छी उनको घुमाया, यात्रा करवाई जो कि उसके मामों ने करवाई दोनों ने। तो उनको खूब सारा ब्लेसिंग देना गुरुजी मालिक। उसके काम में तरक्की देना, उसको अच्छी बुद्धि देना और आपके नाती नातिन ने खूब एंजॉय किया। तो शुक्राना मालिक उनकी तरफ से आपका शुक्राना। गुरुजी अगर मैंने कोई भी मन्नत हालाँकि बहुत मन्नतें माँगती थी कि लाइफ को सही करने के लिए फिर भी अगर कोई मन्नत माँगी हो वह पूरी ना करी हो मैंने तो सॉरी गुरुजी मालिक क्योंकि मन्नतें माँग के भूल जाती हूँ और मैं मूर्ख हूँ, तो मुझे क्षमा करें। ये शुक्राना गुरुजी 2 साल हो गए। 2 साल से ऊपर हो गए गुरुजी मालिक आपसे जुड़े हुए यहाँ जहाँ तक मेरे को पता है। बाकी आपने कब जोड़ा है, कब से जोड़ा है वो मुझे नहीं पता। पर अभी भी बच्चों पर, पति पर संकट के सत्संग बंद नहीं हुए हैं कि संकट है ये वो ब्लैक मैजिक बीमारियों के सत्संग अभी भी बंद नहीं हुए, हटे नहीं। हमारे गुनाह इतने बड़े हैं कि मालिक तो हमें क्षमा करें प्लीज़ गुरुजी मालिक। आपकी जुआई की तरफ से क्षमा प्रार्थी हूँ मैं, आपके नाती नातिन की तरफ से और आपकी सालसी मूर्खती की तरफ से गुरुजी मालिक। ज़्यादा शुक्राना या ज़्यादा वडियाई मुझे करनी नहीं आती गुरुजी मालिक। मेरे थोड़े से शब्दों में गुरुजी मालिक आप बहुत सारी आपकी वडियाई समझना गुरुजी मालिक। शुक्राना, शुक्राना हर वेले दा, हर चीज़ दा शुक्राना जो आपने ये जीवन दिया उसके लिए शुक्राना। इतने अच्छे जीवन में माँ-बाप, इतने अच्छे दादाजी, इतने अच्छे दोनों भाई, इतने अच्छे दोनों बच्चे, इतना अच्छा पति दिया उसके लिए शुक्राना मालिक। हालाँकि मेरे दादाजी और मेरे डैडी दोनों आपके चरणों में है गुरुजी मालिक, उनका ध्यान रखिएगा। शुक्राना मालिक, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। मेरी मम्मी को अच्छी हेल्दी-वेल्दी लाइफ ब्लेस कीजिएगा।
लॉन्ग लाइफ ब्लेस कीजिएगा। इतनी तो कीजिएगा ताकि वो अपने नाती-नातिन, अपने पोता-पोती की शादी तो ज़रूर देखे गुरुजी मालिक, पर हेल्दी लाइफ ब्लेस कीजिएगा गुरुजी मालिक, क्योंकि लाइफ ऐसे ही हो वो उसका कोई फ़ायदा नहीं। हेल्दी लाइफ ब्लेस कीजिएगा गुरुजी मालिक खुशियों के साथ। हालाँकि उनके बहू-बेटा उनको अच्छे से रख रहे हैं। टचवुड बुरी नज़र से, मेरी बुरी नज़र से भी बचाइएगा और उनको हर किसी की बुरी नज़र से बचाइएगा। ये सत्संग 2-3 बार आ गया कि अभी मैं सुनती हूँ गुरुजी कि तेरे शरीर, रोज़गार, बरकत, पैसों को बाँधा गया है। तेरे किसी अपने नहीं जिसके पास तू अपना रोना रोने गया था। तेरे सारे बंधन काट कर तुझे आज सुखी कर दूँगा। सत्संग सुन। तो मैंने गुरुजी मालिक ये सत्संग सुन लिया है। तो शुक्राना गुरुजी मालिक, सत्संग सुनकर आपने कष्ट कटवाया होगा, रोज़गार और जो भी आपने बोला शरीर और ये बरकत जो बाँधी हुई थी पैसों की, वो सब आपने दूर करी होगी। शुक्राना मालिक। सत्संग में सुनवा ले। हाँ, सत्संग में आप बार-बार सुनवाते हो गुरुजी मालिक कि घर की औरत है, घर में आकर करके जाती है, घर की है। गुरुजी मालिक हमें नहीं पता, क्योंकि जेठ-जेठानी है, उन्होंने अपना अलग से सेपरेट दोनों ने घर बनाया हुआ है, लेकिन वो डेली आती है गुरुजी मालिक, और आगे भी उसने ही हमारा बहुत ज़्यादा नाश किया हुआ था गुरुजी मालिक। बाकी आप देखिए, हम नहीं देखते कि वो अभी भी हटी है, नहीं हटी है। अगर नहीं हटी है तो गुरुजी मालिक आप सज़ा दो, क्योंकि बिना मतलब के ऐसे किसी को परेशान करना, हमने नहीं पता हमें कि हमने पिछले जन्म में क्या कर्म किए थे, लेकिन इस जन्म में पता है कि हमने उसे कोई दुःख नहीं दिया, उसे कोई कुछ नहीं किया, कोई कुछ बुरा नहीं किया, कुछ बुरा नहीं बोला, कभी हम लड़े नहीं, कभी उस पर यहाँ तक कि शक वहम भी नहीं किया, बल्कि सब पर करते थे, उस पर नहीं किया। लेकिन अभी भी हटी नहीं है तो गुरुजी मालिक उनको उसको सजा दो गुरुजी मालिक। मैं ये नहीं बोलूँगी कि माफ़ी दे दो, क्योंकि बहुत सैली है गुरुजी मालिक। और सत्संग में सुनवाया कि तेरे बड़े त्योहार और व्रत को नज़र लगा रखी है, ये सत्संग मैंने आज ही सुना गुरुजी मालिक। हाँ, सत्संग कोई भी त्योहार हो गुरुजी मालिक, या खास करके स्पेशली करवा चौथ का व्रत हो, तो ऐसा हुआ नहीं कि हम हस्बैंड वाइफ की या पैसे को लेके या किसी और रीज़न को लेके लड़ाई झगड़ा ना हुआ, यहाँ तक कि बच्चों के बर्थडे तक को भी लड़ाई झगड़ा ज़रूर होता था। इस बार मैंने गुरुजी मालिक स्पेशली मन ही मन आपको प्रे की थी कि मेरे कारण हर बार मेरे बच्चे का बर्थडे खराब होता है, या कोई किया कराया के करना है, या रीज़न मेरा ही होता है, मेरे कारण होता है। तो आपने इस बार बर्थडे अच्छे से मनवाया। कोई हाँ, हालाँकि मनमुटाव था मियाँ बीवी में, लेकिन फिर भी आपसे प्रे करी हुई थी और बर्थडे पर फिर भी बहुत अच्छे से हो गया, उसके लिए शुक्राना मालिक। और जो ये त्योहार, व्रत ये हमारे जो बंधवाए हुए हैं या नज़र लगाई हुई है गुरुजी मालिक, तो ये प्लीज़ नज़र दोष दूर कीजिएगा। ऐसी नज़रें लगाने वालों को हमसे दूर कीजिएगा सदा के लिए गुरुजी मालिक, कृपा कीजिएगा। शुक्राना मालिक, शुक्राना। सत्संग अच्छे से क्या करना नहीं आता, कैसे बोलना है, कहाँ से शुरू करना है, कहाँ से नहीं, वो मुझे नहीं आता गुरुजी मालिक। पर प्लीज़ कृपा गुरुजी मालिक, आप मेरी बाँह पकड़ के आप खुद ही करवा लीजिएगा, क्योंकि आपकी ये आलसी थी, एक तो भुलक्कड़ है और बहुत ज़्यादा आलसी है गुरुजी मालिक। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना आपका हर वेले दा, हर चीज़ दा शुक्राना, हर दात दा शुक्राना। एक हाथ जोड़ के बिनती गुरुजी मालिक, ना संध्या वेला हो पा रहा, ना अमृत वेला हो पा रहा। मैं अमृत वेला कर लूँ, चाहे वो आधा घंटे का ही होता था, लेकिन मैं फ्री हो जाती थी कि दिन में कुछ टाइम तो, क्योंकि बोलते हैं उस टाइम धरती पर होते हैं भगवान। तो प्लीज़ गुरुजी मालिक हाथ जोड़ के विनती है कि अमृत वेला ज़रूर करवाना आप गुरुजी मालिक, ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा साहेब, नमः शिवाय गुरुजी सदा साहेब। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी के सामने बैठ के शुक्राना सत्संग बोल रही हूँ। संगत जी, जो गुरु जी बुलवाएंगे वो ही बोलूंगी। शुक्राना मेरे गुरु पिता का। संगत जी, हमारे यहाँ एक स्टॉल वाला आता है, बेगने, कश्मीरी है। तो संगत जी वो 2 बार आया, तो मैं ऐसे ही कुछ ऐसे ही था पैसों का, तो मैं नहीं ले पाई, मैंने नहीं लिए। फिर उसके बाद में तीसरी बार आया, तो मैं जब भी नहीं ले पाई, मैं नहा रही थी उस टाइम पर। तो संगत जी, मैंने गुरुजी से ये कहा, गुरुजी मेरे पास रुपए हों जब आइए स्टॉल वाला। उस टाइम तो थे संगत जी जब मैं नहा रही थी। वैसे तो रहते हैं, लेकिन हर चीज देखी जाती है, ऐसा नहीं है कि जो चीज लेनी है हमें वही ले लो, घर में भी सब कुछ देखना होता है। लेकिन मैंने उस टाइम पे 2 बार नहीं लिए, और तीसरी बार में मैं जब भी गुरुजी की मर्जी नहीं होगी, क्योंकि मैं कुछ भी करने जाती हूँ या कुछ लेने जाती हूँ, तो मैं गुरुजी से कहती हूँ गुरुजी मुझे लेके चलो। तो संगत जी
जब भी नहीं मैंने लिए। संगत जी मैंने फिर गुरुजी से उससे पहले ये कहा था 2 बार के बाद में कि गुरुजी मेरे पास रुपए हों जब ये स्टॉल वाला आए। तो संगत जी फिर स्टॉल वाला आता है चौथी बार अभी कुछ दिन पहले। तो मैं गुरुजी के पास खड़ी हुई और गुरुजी से मैंने कहा गुरुजी महाराज तुम मुझे लेके चलो और अच्छे से स्टॉल दिलवा के तुम ही लाना, तुम दिलवा के लाना। तो संगत जी मैं गुरुजी के सामने जाती हूँ, गुरुजी से बोलती हूँ और गुरुजी मुझे लेके जाते हैं। तो संगत जी मैंने स्टॉल लिए, मैं लेने तो एक ही स्टॉल गई थी, लेकिन वो मैंने लिया एक स्टॉल और दूसरा स्टॉल भी अच्छा था तो मैंने वो भी ले लिया। तो संगत जी गुरुजी ने एक की जगह मुझे 2 स्टॉल दिलाए, दोनों ही बहुत अच्छे हैं, गरम स्टॉल है। शुक्राना गुरुजी महाराज का। संगत जी गुरुजी हर छोटी छोटी बातें सुनते हैं और हर बात हमें छोटी छोटी बातें बहुत अच्छे से समझाते हैं। संगत जी वो कौन समझा सकता है गुरु पिता के बिना कोई ही नहीं समझा सकता संगत जी जैसे गुरुजी समझाते हैं। शुक्राना गुरुजी। संगत जी गुरुजी बहुत प्यारे हैं, बहुत दुलार देते हैं अपनी संगत को, अपनी बेटियों को। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। संगत जी गुरुजी का घर है, पहले बहुत कहने सुनने होते थे जब गुरुजी ने मेरा हाथ नहीं पकड़ा था, लेकिन संगत जी जब से गुरुजी महाराज ने हाथ पकड़ा है थोड़ा बहुत कभी हो जाता है 19-20 जैसे 100 में से 1% कभी नहीं। तो संगत जी मेरे गुरु पिता की कृपा से घर में सुख शांति है। और संगत जी वैसे तो कहते हैं ना कि जितना हो उतना कम है, इंसान की ख्वाहिशें बहुत हैं। गुरुजी की महाराज की कृपा से संगत जी मेरे गुरु पिता की कृपा से जो गुरुजी कहते हैं ना मौजी मौज, संगत जी सब कुछ है गुरुजी महाराज का दिया हुआ। संगत जी ये तो सब चलता रहता है, कभी ये नहीं है कि कभी वो नहीं है। संगत जी गुरुजी महाराज शरीर से भी स्वस्थ कर रहे हैं। संगत जी आजकल गुरुजी कैंसर के और हार्ट अटैक के बहुत सुनवा रहे हैं। गुरुजी महाराज से हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ संगत जी। गुरुजी महाराज कोई भी कष्ट हो तुम कष्ट को काट देना। मैं हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ, अपनी गलतियों की माफी मांगती हूँ, अपने गुनाहों की माफी मांगती हूँ। गुरुजी महाराज अब मुझसे सहन नहीं होता, मैं थक चुकी हूँ। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। और संगत जी गुरुजी महाराज का मैं कितना गुणगान करूं। संगत जी मैं रोना नहीं चाहती जब गुरुजी का सत्संग बोलती हूँ तो। संगत जी मेरे जो दर्द था मैं जो बोलती थी आज गुरुजी महाराज ने मेरा वो कष्ट काट दिया। संगत जी अब मेरे वो दर्द नहीं है। गुरुजी महाराज ने अभी कुछ दिन पहले कहा था तेरा दर्द मैं बिल्कुल ठीक कर दूंगा, तेरा कष्ट काट दूंगा। संगत जी गुरुजी मुझसे ये कहते थे तू मांग ले जो तुझे मांगना। संगत जी मैं गुरुजी से यही कहती थी गुरुजी मेरे कष्ट काट दो, मेरे इस दर्द को ठीक कर दो। संगत जी मैंने कई सत्संगों में सुनाया है, रक्षाबंधन से 2 दिन पहले मेरे ये दर्द हुआ था। संगत जी मैंने वैसे तो ध्यान दिया था, जैसे मैं पैर करके बैठती थी सीधा तो मेरे पैर में 2-3 बार ऐसे जैसे कोई वो नहीं होती हड्डी खट से बोलती है ऐसे करके हुई। तो संगत जी मैंने अंदाज तो किया, मैंने कि मेरे ऐसे कभी नहीं होता था, ये क्या हुआ है। मुझे नहीं डर लगता संगत जी, गुरुजी है ना सब कुछ वो संभाल लेते हैं, दुख में भी संभालते हैं और सुख में भी संभालते हैं। संगत जी हम लोगों को तो एकदम खुशी मिल जाए तो वो भी बर्दाश्त नहीं होगी, पागल हो जाएंगे, और एकदम दुख आ जाते हैं तब भी हम पागल हो जाते हैं। संगत जी दुख में और सुख में दोनों ही गुरुजी, दोनों में गुरुजी हमें संभालते हैं। तो संगत जी एक आंटी से कल मैंने सत्संग में सुना कैसे ऐसे मेरी वो हड्डी खट से हुई एकदम
संगत जी मुझे भी हुआ कि हाँ गुरुजी मुझे सुनवा रहे हैं। मेरे भी 2-3 बार हुआ ऐसे। तो मेरा गुरुजी ने कष्ट काट दिया है संगत जी। मुझे अब ना चलने में परेशानी होती, ना कुछ उठाने में। संगत जी मैं उस दर्द से इतनी परेशान थी कि मैं क्या ही बताऊं। संगत जी मैं ऐसी हो गई थी कि मैं झुक के चलने लगी थी। मुझसे सीधा चला नहीं जाता था उस दर्द के चक्कर में। संगत जी एक दिन बेटा बोला, मैं इसे नहीं बताती थी संगत जी बेटा को। संगत जी हस्बैंड अंकल तो ठीक है, गुरुजी को सब पता है, वो नहीं पूछ ऐसा कुछ ज्यादा। ठीक है जो भी है संगत जी गुरुजी को पता है, मैं क्या ही बताऊं। बेटा बोला मम्मी तुम्हारे दर्द है। मैंने कहा नहीं है मेरे दर्द नहीं है। मैं उसके सामने संगत जी कभी नहीं रोई। संगत जी कह रहा झुक्की क्यों चलती हो। मैंने की वैसे ही चल रही हूँ। कह रहा दर्द है। मैं नहीं है दर्द। संगत जी मेरे इतना दर्द रहता था, मैं झुक के चलने लगी थी, मुझसे सीधा नहीं चला जाता था। संगत जी आज गुरुजी महाराज ने मेरा वो कष्ट काट दिया। संगत जी गुरुजी इतने महान है, इतने दयालु हैं, इतनी सुनते हैं। संगत जी गुरुजी ने इतने विचार बदल दिए कि मैं अपने आप को क्या ही बताऊं मैं कैसी थी। लेकिन संगत जी गुरुजी ने बहुत सद्बुद्धि दी है, ज्ञान भी दिया है। गुरुजी जैसे कहते हैं मैं ऐसे चलने की कोशिश करती हूँ। और मैं गुरुजी महाराज से यही कहती हूँ, गुरुजी महाराज मुझे सद्बुद्धि दो, मुझे ज्ञान दो, मुझे अपने बताए हुए मार्ग पर चलाओ। मेरे महाराज, मेरे पिताजी, मेरे गुरुजी। संगत जी मैं ये ही मांगती हूँ गुरुजी महाराज से। और मैं बस ये कहती हूँ गुरुजी ये तुम्हारा परिवार है, इसे सबको खुश रखो। संगत जी और जो गुरुजी का दिया हुआ है और वो गुरुजी को पता है। संगत जी गुरुजी की कृपा से जब अपने घर में सुख शांति होती है तो संगत जी सब कुछ, तो संगत जी गुरुजी ने सब कुछ दिया है, सब कुछ दिया है। और जो नहीं भी दिया उसका भी शुक्राना है, और जो दिया है उसका भी शुक्राना है। और संगत जी तो गुरुजी ने जो मेरा दर्द ठीक किया उसके लिए मैं गुरुजी से बहुत बहुत शुक्राना बोलती हूँ। संगत जी बहुत बहुत शुक्राना बोलती हूँ, लख लख बार शुक्राना बोलती हूँ। संगत जी ऐसे हैं गुरुजी महाराज। संगत जी अभी कुछ दिन पहले मैं सत्संग में गई थी तो मेरे पैर में दर्द हो रहा था, तो मेरे से बैठा नहीं जा रहा, तो मैंने पैर सीधा किया। जब भी नहीं दर्द बंद हुआ मैंने फिर पैर मोड़ के अपने रख लिया, सही से पालती मार के बैठ गई। मेरा दर्द ठीक नहीं हुआ। मैंने कहा गुरुजी महाराज मेरे दर्द को ठीक करो। तो संगत जी मेरे गुरुजी महाराज, सभी के गुरुजी महाराज, गुरुजी ने मेरा दर्द वहीं के वहीं ठीक किया। शुक्राना गुरुजी। और संगत जी अब तो मेरे गुरुजी ने, सभी के गुरुजी हैं संगत जी, गुरु पिता ने मेरा कष्ट काट दिया। संगत जी मैं उस दर्द से इतनी परेशान थी। संगत जी कभी कभी मैं ऐसी हो जाती थी, मैं रोने को हो जाती थी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी गुरुजी ने मेरा कष्ट काटा, लख लख शुक्राना। और संगत जी मेरी स्किन प्रॉब्लम है पैरों में, उसके लिए भी गुरुजी ने डॉक्टर बताया। संगत जी मैं वहां तो नहीं जा पाई, गुरुजी से माफी मांगती हूँ। लेकिन दूसरी जगह है वो मैं वहां जाती हूँ, गुरुजी से ब्लेस करवा के दवाई खाती हूँ। और संगत जी मैं गुरुजी से ये कहती हूँ, गुरुजी महाराज तुम ही डॉक्टर बन जाओ, तुम ही वैद्य बन जाओ, तुम मेरी इस स्किन की प्रॉब्लम को ठीक करो। मेरे परमात्मा। संगत जी मेरी उस प्रॉब्लम को 3-4 साल हो गई, मैंने बहुत दवाई खा ली, ठीक हो जाती है। तो मैं गुरुजी अब तो कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम हो गई थी। तो सत्संग मेरा बड़ा हो जाएगा, आगे किसी सत्संग में बताऊंगी जब गुरुजी बुलवाएंगे। तो संगत जी गुरुजी महाराज ने अब तो वैसे प्रॉब्लम बहुत ठीक है। तो संगत जी ऐसे हैं गुरुजी महाराज। संगत जी ये था जो मेरे स्किन प्रॉब्लम है, वो बात आज सत्संग बड़ा हो जाएगा संगत जी, इसलिए मैं नहीं बोल रही, आगे बोलूंगी। तो शुक्राना गुरुजी महाराज का
जो मेरा दर्द ठीक किया, और हर समय अंग संग रहने का शुक्राना। संगत जी, गुरु जी महाराज अंतर्यामी है, परमात्मा है। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी हमारे भोलेनाथ हैं। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी का मंत्र जाप बोलूंगी, आप भी बोलना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। जय जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मेरे गुरु जी महाराज की जय। गुरु जी शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ जरूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।